So, hello everyone, and welcome to this session, Dev 101, Introduction to Development, which is the first session of a series of sessions we'll be conducting for getting you started with the world of development. So, what is development exactly? Development is basically you writing code to build something that can be used by other people, like building a website or a web application, building a mobile application, building a game which others can play, etc. Like till now, most of you have been doing competitive programming. But does the code that you write in these contests come to the use of other people? Definitely not. Competitive programming is a kind of sport that helps you enhance your problem solving skills, which is what the interviewers basically look for when you apply to a company. They need a candidate with good problem solving skills and a good hold over data structures and algorithms. But development is what you will be doing after joining that company. After joining a company, they won't be giving you 100 questions and ask you to write solutions for it. So along with good problem solving skills, most of the companies also expect you to have some good development skills, like some good projects or some good open source contributions before applying to the company, which can which can show that you already have some experience in development. So let me try a bit to explain the whole process. So the companies can be divided into two categories. One is big MNCs like Google, Microsoft, Amazon, etc. And the other contains some not that big companies and startups like Paytm, Big Basket, Grofers, Cred, etc. So companies like Microsoft, Google, which falls into the first category, possess the capability to train the newcomers with the development skills when they join the company. So they don't expect you to know development beforehand. What they expect is really good problem solving skills and a really good hold over data structures and algorithms, which is what makes entering these companies a bit difficult. But apart from these small batch of companies, most of the companies and startups cannot spend so much money just on the training of the newcomers, and they expect you to start working for the company from day one. And what you will be working on, developing something. Of course, there are many other roles within a company. Here I'm mainly talking about software engineering roles. And things may change a bit with game development, data science, and other roles. So along with good problem solving skills and a good knowledge of data structures and algorithms, these companies also expect you to have some good development skills beforehand, for which they look for some good projects you've worked on or some good open source contributions you've made. This uh, this was all with respect to internships and placement. Apart from that, it is a lot more fun to develop something, and the satisfaction you get when someone uses the code you wrote is just amazing. And just think, if the code you wrote impacts millions of users around the world, it is just mind blowing. And you can make this impact right from your college itself by contributing to some good open source projects. Like you all must have used VLC Media Player. You can actually contribute to that software. You can even contribute to Python programming language, which is also open source. And there are many, many other projects like this. Conclusion being, having good problem solving skills and development skills are both important. And you just need to find a right balance between them. Like some people like to develop more and some people like to solve problems more. And that's fine. The point is, do not skip the other thing entirely because of the first, as both are important. So let's start with web development first. Over to you, Manu. Thank you, sir. So what is web development actually? सबसे पहले ये समझते हैं, किसी को हिंदी में प्रॉब्लम तो नहीं है ना अगर हिंदी में बोलूँ तो? नो, आई गेस चैट में तो कुछ भी नहीं आया। ठीक है। सो वेब डेवलपमेंट से पहले ये समझना पड़ेगा कि जो इंटरनेट है और तुम लोगों के पास लैपटॉप यूजुअली रहता है, एक वेब ब्राउजर की एक्सेस रहती है, तुम बहुत सारी साइट्स पे जाते हो, तुम जो भी तुम्हें रीड करना है रीड करते हो, जो भी चीज़ें शो होती हैं तुम्हें, उसके लिए तुम्हें अगर किसी को बनानी होंगी वैसी चीज़ें तो उसके लिए वो वेब डेवलपमेंट का यूज़ करेगा, राइट। उसको पूरी की पूरी वेबसाइट पहले
समझना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट किस बारे में है। फिर वो मतलब कोई भी अब तुम प्रोजेक्ट करते हो, तुम AI ML का यूज करते हो या तुम कोई अच्छा सा एल्गोरिदम यूज करते हो, तुम्हें उसको प्रेजेंट करना है, तो तुम्हें वेब डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें एक वेब एप्लीकेशन की जरूरत पड़ सकती है, हो सकता है तुम ब्लॉग्स लिखना चाहते हो, उसके लिए जरूरत पड़ेगी। तो मल्टीपल यूसेज रहते हैं वेब डेवलपमेंट के, ठीक है। और सिमिलर एंड्रॉइड डेवलपमेंट में भी रहता है, बट दोनों थोड़ी डिफरेंट फील्ड्स है, क्योंकि वो एंड्रॉइड के लिए है और ये कोई भी जिसके पास इंटरनेट की एक्सेस है, एक ब्राउजर है, वो यूज कर सकता है, ठीक है। तो अब वेब डेवलपमेंट में भी दो पार्ट्स रहते हैं बेसिकली, एक रहता है फ्रंट एंड पार्ट और एक रहता है बैक एंड पार्ट। ओके, सो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों जब साथ में वर्क करते हैं, सो तब एक वेब एप्लीकेशन बनती है। लाइक अगर तुम्हें इसे और अगर डिटेल में जाऊं, तो सबसे पहले फ्रंट एंड क्या होता है ये समझते हैं। फ्रंट एंड जो भी तुम जैसे कोई भी साइट सर्च करते हो, लाइक तुमने अभी फेसबुक सर्च किया, तो फेसबुक सर्च करने पर होता क्या है एक्चुअल में, वो एक सर्वर बना हुआ रहता है उनका, उस सर्वर तक रिक्वेस्ट जाती है, वहां से अपन को फ्रंट एंड का जो भी पेज रहता है, जो भी तुम्हें डिस्प्ले होना है कि क्या तुम्हें नए पोस्ट डिस्प्ले होने वाले हैं, क्या चीजें डिस्प्ले होने वाली हैं, और दूसरी जैसे किसी की स्टोरीज होंगी, ये सब चीजें सारी की सारी तुम्हारे पेज पे लोड हो जाती है सामने। सो जो तुम्हें सामने दिखता है एक्चुअल में वो फ्रंट एंड होता है, ठीक है। और अब फ्रंट एंड का काम सिर्फ उस पर्टिकुलर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रेंडर करवाना है सही से, और दूसरी और भी चीजें रहती है, वो आगे देखते जाते हैं। बट बैकएंड का काम रहता है वही डेटा को निकालना, उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करना, कुछ भी जो भी बैकएंड में मतलब बैकग्राउंड की जो भी प्रोसेसेस रहती हैं। लाइक तुमने एक लाइक बटन पे क्लिक करा, तो क्लिक होने के बाद जो भी प्रोसीजर रहेगा यहाँ से फ्रंट एंड में हैंडल नहीं होगा, वो बैक एंड में हैंडल होगा। ऐसी जो भी प्रोसेसेस रहती है मेनली बैक एंड में होती है। सो फ्रंट एंड को अगर फ्रंट एंड सीखना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो जो चीज आनी चाहिए वो रहती है HTML। HTML के बाद आना चाहिए CSS, CSS के बाद जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में भी तुम लोगों को बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। CSS में भी तुम लोगों को बूटस्ट्रैप सीखना पड़ेगा। सो एक एक कर करके हर चीज को देखते हुए चलते हैं, ठीक है। सो सबसे पहली चीज आती है HTML। HTML क्या है, एक मतलब स्केलेटन जैसे रहता है हर वेब पेज का। लाइक तुम्हें क्या लिखना है वहां पे, क्या आर्टिकल शो होने या पेजेस, मतलब कुछ पैराग्राफ शो होने रहेंगे वहां पे, या कुछ हेडिंग शो होती हैं, कुछ बुलेट पॉइंट्स में कुछ इन्फॉर्मेशन शो होती है, कई बार बुलेट पॉइंट्स में नहीं, कई बार ऐसे कुछ लाइंस बनी हुई आती है, जो भी डिफरेंट चीजें ऐसी रहती हैं, वो सारी चीजें हम फ्रंट HTML के थ्रू करते हैं। इट्स बेसिकली अ स्केलेटन। उसमें बस तुम इंफॉर्मेशन लिखते हो, कौन सी इमेजेस शो करनी है, इन सब के लिए HTML में टैग्स बने हुए रहते हैं, ठीक है, और उनका यूज करके वो शो होता है। बट अब अगर सिर्फ HTML का यूज करा जाएगा, तो फ्रंट एंड जो भी रहेगा वो अच्छा दिखेगा नहीं। मतलब HTML एक्चुअली में बस एक तरह से मार्कअप लैंग्वेज है, ओके। वो सिर्फ एक ब्लूप्रिंट की तरह, एक स्केलेटन की तरह एक्ट करती है। इट्स नॉट द डिजाइन पार्ट, ठीक है। डिजाइन पार्ट के लिए हमें CSS की जरूरत पड़ती है, ठीक। CSS होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स रहती हैं। इसमें तुम जो भी मतलब आई गेस ऐसे बोला जा सकता है कि जो भी डिजाइन शो होती है, जो भी UI डिजाइन करता है, वो CSS के लिए ही करता है, कि CSS कैसी अप्लाई होगी, तुम्हें क्या क्या अलग अलग चीजें दिखेंगी, क्या कैसा दिखना चाहिए, वो सब CSS के बेसिस पे होता है। लाइक अगर मैं तुम्हें एक दो एग्जांपल दिखाऊं कि विदाउट CSS एंड विद CSS कैसे पेजेस दिखते हैं, तो एक सेकेंड स्क्रीन शेयर करने वाली। सर आपकी स्क्रीन शेयरिंग है तो हो नहीं पा रहा है, प्रियांश सर। एक सेकेंड। प्रियांश, क्या? स्क्रीन ओके, हो शेयरिंग नहीं गया हो पा रही हो है। गया हो गया हो मैंने तो गया। करनी है क्या? हाँ तो ये होगा। अच्छा, मैं स्टॉप कर देता हूँ। ओके, हाँ ओके, सो स्क्रीन दिख रही है सबको? मनन एक सेकंड। प्रियांश, चैट में मैसेजेस हैं कि ज्वाइन नहीं कर पा रहे बच्चे। हाँ, वो मैं एक नया मीटिंग रूम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइव स्ट्रीम कर देंगे उसमें। एक मिनट।
ओके, लिंक बना दो सर मैं। सर आगे कंटिन्यू कर दूं ना फिर? हाँ सर। ओके, सो अगर तुम सिर्फ HTML के बेसिस पे देखना चाहोगे पेज को, तो जैसे ये HTML कोड कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो तुम्हें कुछ पेज ऐसा दिखेगा। और मतलब ऐसे अगर तुम इस पेज को देखते हो तो इतना अट्रैक्टिव पेज नहीं लगता है। बट यही पेज अगर जैसे ये भी एक पेज होता, सेम पेज अगर CSS अच्छे से लगाई जाए, अलग अलग चीजें लगाई जाए, तो पेज का पूरा लुक ही चेंज करा जा सकता है। एंड ऑब्वियसली कोई भी जब प्रोडक्ट बनाता है, कोई भी वेबसाइट बनती है, तो यूजर क्या देखना चाहेगा? वो जो HTML से बनी हुई चीज सिर्फ नहीं देखना चाहेगा, वो अच्छी सी डिजाइन देखना चाहेगा। सो दैट्स वन पार्ट ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट, जो कि आता है UI एंड UX डिजाइनिंग। ओके, सो ये एक पार्ट हो जाता है। इसके अलावा जैसे अगर कोई सीखना चाहता है तो सबसे पहले तुम्हें HTML ही सीखना पड़ेगा, उसके बाद तुम CSS सीख सकते हो। CSS में भी जैसे CSS डायरेक्ट रॉ CSS लगाने की जगह SAS भी एक CSS का टाइप रहता है। मतलब इट्स बेसिकली अ प्री कंपाइल्ड CSS फॉर्म, और उसमें वेरिएबल्स और दूसरी बहुत सारी फंक्शनैलिटी एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। और जो एडवांस CSS यूज करते हैं वो यूजुअली SAS का यूज करते हैं, SAS। अगर तुम कोई भी फेसबुक देखते हो तो वो एक वेब एप्लीकेशन होती है, एक वेब पेज नहीं होता है। तुम्हें उसके लिए पहले जैसे तुम साइट पे जाओगे तो तुम बार बार तुम्हें दिखता है कि चीजें अपडेट हो रही हैं। ओके, सो यूजुअली जब तुम HTML का सिर्फ यूज करोगे तो चीजें अपडेट ऐसे नहीं होंगी। बट अगर तुम सेम टाइम पे जावास्क्रिप्ट का यूज करने लगोगे और उसको एक फुल फ्लेज वेब एप्लीकेशन बनाओगे, तो बहुत सारी दूसरी चीजें भी तुम कर सकते हो साइट के साथ में, कि रियल टाइम अपडेट्स हो जाते हैं, उसको तुम एप्लीकेशन की तरह यूज कर सकते हो। ओके, सो जो HTML और CSS का यूज करके बनाई जा सकती है वो सिर्फ वेब पेजेस होते हैं। जावास्क्रिप्ट एक और लैंग्वेज है जो वेब डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका यूज करके मैंने जैसे बोला वेब एप्लीकेशन में तुम कन्वर्ट कर सकते हो। उसके अलावा जो भी तुम बटन्स पे क्लिक करते हो, बटन पे क्लिक करने पे क्या एक्शन होना है, क्या दूसरी फंक्शनैलिटीज रहती हैं, वो सब जावास्क्रिप्ट से ऐड होती हैं। ओके, अब जावास्क्रिप्ट से ये फंक्शनैलिटी ऐड करने के बाद तुम जावास्क्रिप्ट से बैकएंड से कनेक्शंस बना सकते हो। कनेक्शन बनाने के लिए तुम रिक्वेस्ट भेजते हो अलग अलग चीज़ों का यूज़ करके, कई बार एक्सियोस का यूज़ करते हैं, फेच का यूज़ करते हैं, और उनका यूज़ करके तुम रिक्वेस्ट भेजते हो। तो जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज रहती है, उससे तुम एक्चुअल में पूरे HTML के साथ भी अलग अलग इंटरैक्शंस कर सकते हो। उनको HTML कंटेंट, पेज के HTML कंटेंट को मैनिपुलेट कर सकते हो। जैसे तुमने एक बटन पे क्लिक करा तो कुछ पार्ट हट जाना चाहिए, फिर से बटन पे क्लिक करो तो वही आ जाना चाहिए। तो ऐसे जो छोटे छोटे एक्शंस रहते हैं वो जावास्क्रिप्ट से पॉसिबल हो पाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट तुम्हें जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं फ्रंट एंड में फ्रेमवर्क्स होते हैं दूसरे, वो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। लाइक रिएक्ट और व्यू कुछ बहुत फेमस फ्रेमवर्क्स है। रिएक्ट फेसबुक का ही बनाया हुआ है, फेसबुक भी रिएक्ट यूज करता है ऐसे। और ये जैसे जो फ्रेमवर्क्स रहते हैं इनका एक बेस प्रोवाइड करना रहता है काम मेन तो, कि अगर तुम कोई भी पेज चालू करते हो, अगर तुम सिर्फ प्लेन HTML CSS और जावास्क्रिप्ट यूज करते हो, तुम्हें बार बार पेज को चेंजेस देखने के लिए रीलोड करना पड़ेगा। कुछ पार्ट हो सकता है कि मतलब शो टाइम पर नहीं हुए जैसा तुमने एक्सपेक्ट करा था, बट रिएक्ट और व्यू के साथ वो ज्यादा इजीली पॉसिबल हो जाता है तुम्हारे लिए। इसके ये कुछ बेसिक चीजें होती है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। अब अगर तुम्हें फ्रंट एंड पूरी तरह से सीखना है, फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, तो तुम्हारा जो बेसिक प्रोसीजर होगा या जो सीखने का तरीका होगा वो होगा, पहले HTML सीखी, फिर CSS सीखी। CSS में तुमने बूटस्ट्रैप सीखा एज अ फ्रेमवर्क। SAS भी सीख सकते हो अगर तुम्हें डिजाइन साइड पे ज्यादा जाना है, तुम्हें UI UX इंजीनियर बनना है उन सब पार्ट के लिए। उसके बाद आ जाता है, ये सब करने के बाद आती है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में भी बहुत सारी चीजें रहती है जो सीखनी पड़ेंगी। जावास्क्रिप्ट में हो गया वैनिला JS हो गया, jQuery हो गया, ये दो बेसिकली रिक्वायर्ड रहते हैं। इसके बाद तुम कोई फ्रेमवर्क चालू करते हो। फ्रेमवर्क थोड़े डिफिकल्ट रहते कंपेयर टू नॉर्मल HTML CSS JS, उनको सीखोगे। और उसके अलावा तुम्हें थर्ड पार्टी APIs के साथ वर्क करना आना चाहिए।
थर्ड पार्टी एपीआईज अगर मैं बोलूँ तो क्या होते हैं, एक तरह से उनका बैकएंड पहले से बना हुआ है, ठीक है, और तुम उन बैकएंड से कुछ इंफॉर्मेशन निकालते हो, या फिर एपीआई भी अगर बोला जाए तो एक इंटरफेस रहता है जो कि तुम यूज कर सकते हो, मतलब किसी ने कुछ पर्टिकुलर पार्ट बना के रखा हुआ है इंटरनेट पे, ठीक है, तुम उसको उसका यूसेज कर सकते हो। तो थर्ड पार्टी एपीआई एक चीज होती है जो तुम्हें सीखनी पड़ेगी, उसके बाद तुम फ्रेमवर्क सीख सकते हो, कोई भी व्यू या रिएक्ट जैसा। ओके, सो अगर तुम्हें स्टार्ट करना है, तुम्हें बेसिक चीजें सीखनी है, तो सोलो लर्न पे ही सब अवेलेबल रहता है, इसमें आर्टिकल्स के फॉर्म में रहेगा। और क्योंकि तुम्हें कुछ लैंग्वेजेस पहले से आती है, जैसे किसी ने सी प्लस प्लस सीखी होगी, किसी ने पाइथन सीखी होगी, किसी ने जावा सीखी होगी, सो इसके थ्रू सीखना मैं बोलूंगा सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं रहता है कि बहुत ज्यादा वो इन डेप्थ जाएंगे, आर्टिकल्स बने रहते हैं, तुम्हें जो सही लगता है तुम जल्दी जल्दी भी देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें सिमिलर होंगी। HTML और CSS सीखने के बाद रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन के बारे में भी सीख सकते हो और जावास्क्रिप्ट भी सीख सकते हो, ठीक है। सो ये 4 चीजें बेसिकली सबसे पहले सीखनी होंगी, और उसके बाद तुम ये सब होने के बाद तुम फ्रंट एंड डेवलपर बन जाओगे, और फिर तुम बैक एंड की तरफ भी मूव कर सकते हो। सो बैक एंड के लिए मनी बताएगा सारी चीजें आगे। मनी है नहीं क्या? ओके, वो शायद बाहर हो गया। सर एक्चुअली वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पे फुल है। एक कोई लीव करके उधर ज्वाइन कर लेगा क्या? मुकुल तू लीव करके उधर ज्वाइन कर ले प्लीज, जो दूसरी लिंक भेजी है जूम की उस पर ज्वाइन कर ले। ओके, हो गया तो इस वजह से। मनन इतने क्वेश्चंस आंसर कर दो चैट पर। ओके सर, कर रहा हूँ। फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है? सो बेसिकली फुल स्टैक डेवलपर वो होता है जिसको फ्रंट एंड प्लस बैक एंड की पूरी नॉलेज हो, और डेटाबेस मैनिपुलेशन के बारे में भी पता हो, और उसकी रिक्वायरमेंट्स की कुछ आइडिया दीजिए प्लीज ऐसा। तो फुल स्टैक डेवलपर के लिए तुम लोगों को फ्रंट एंड में कोई भी अगर बेसिक साइट रहती है, वेब एप्लीकेशन रहती है, वो बनाने आनी चाहिए। तो हो सकता है तुम्हें रिएक्ट आती हो, मतलब मोस्टली आनी चाहिए, कोई ना कोई एक फ्रेमवर्क आना चाहिए तुम्हें, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क आना चाहिए, या तो रिएक्ट आता हो, व्यू आता हो, एंगुलर आता हो, कोई भी एक फ्रेमवर्क आना चाहिए। और दूसरी चीज, तुम्हें बैक एंड में भी कोई फ्रेमवर्क आना चाहिए, या तो फ्लास्क आना चाहिए, या फिर तुम्हें नोड एंड एक्सप्रेस का यूज करते आना चाहिए। सो ये दोनों, और साथ में डेटाबेस के साथ भी कैसे वर्क करते हैं वो सब चीजें भी तुम्हें पता होनी चाहिए। बेसिकली हम लोग स्टार्ट सेकेंड ईयर से कर दें, अभी से भी कर सकते हो। अगर तुम सीपी करते हो, थोड़ा टाइम इसको दे दो। जैसे मैं जब स्टार्ट किया था तो सिर्फ वीकेंड पे, इसके बाद पूरा दिन वीकेंड पे इस पे वर्क कर लेता था, बाकी टाइम पे सीपी कर लेता था। और लॉन्ग चैलेंज देते रहो, या फिर शॉर्ट कॉन्टेस्ट जो भी दे रहे हो वो देते रहो, और उसके साथ साथ करते जाओ सर। लाइक क्रिकबस ऐप में बॉल पर बॉल अपडेट्स होता है, सो वो जावास्क्रिप्ट से पॉसिबल है एक्चुअली। हाँ, वो जावास्क्रिप्ट के साथ साथ भाई वो फ्रेमवर्क की वजह से पॉसिबल है, क्योंकि वो रियल टाइम अपडेशंस हो पाते हैं उसमें, उस केस में, ठीक है। सो यूजुअली वहाँ कोई फ्रेमवर्क लगा होगा, या फिर हाँ, जावास्क्रिप्ट विदाउट फ्रेमवर्क भी जावास्क्रिप्ट के साथ पॉसिबल होता है। एक सेकंड। अभी भी ज्वाइन नहीं कर पाया क्या मैंने? उसके में पता नहीं क्यों ट्राइंग शो हो रहा है, वो आ गया क्या? हाँ भाई आ गया। हाँ, सो आगे बस बैकएंड के बारे में बता दे, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, बैकएंड कैसे पूरा पढ़ना चाहिए। अच्छा, देखो भी जैसे मनन ने बता दिया कि फ्रंट एंड क्या होता है, जो तुम देख रहे हो लाइक यूआई फ्रंट एंड वाला पार्ट, एनिमेशन आ रही है वो सब, ठीक है। बट इफ यू जस्ट सिंपली मेक दैट, उसका फायदा नहीं है। लाइक स्टैटिक पेजेस
वी वांट वेब एप्लीकेशन नॉट वेब पेजेस. वेब पेजेस बहुत स्टैटिक और लाइक बहुत ओल्ड चीज हो गई है. वी नीड डायनामिक चेंजेस आ रहे हैं हमारी वेबसाइट. जैसे हम ब्लॉगिंग वेबसाइट देखते हैं, लाइक नॉर्मल यूजर्स ब्लॉग क्रिएट करते हैं, ब्ला ब्ला एंड ऑल. दिस इज बैकएंड. बेसिकली बैकएंड इज मेकिंग योर एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिव टू यूजर. मी बीइंग अ यूजर, मैं जो चाहता हूँ कि वेबसाइट में खोलना चाहता हूँ, कुछ डाटा देना चाहता हूँ, कुछ लेना चाहता हूँ, वो सब चीजें लाइक वेबसाइट मेरे को रिस्पॉन्स दे रही है, ठीक है, वो बैकएंड में हम आ जाते हैं. अब ऑब्वियसली बैकएंड फ्रंट एंड दोनों एक साथ ही लिंक करेंगे हम लोग. बैकएंड के दो बेसिक पार्ट्स, लाइक जो मैं कहता हूँ कि बैकएंड ये दो ही हैं. एक बैकएंड में हम बनाते हैं एपीआईज. एपीआईज आर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस. जैसे भी मनन ने बताया था कि हमारा फ्रंट एंड है वो नॉर्मली जैसे हम एपीआई कॉल कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एंड ऑल, तो ऑब्वियसली ये एपीआई को क्रिएट करता ही है. और ये एपीआई क्रिएट होती है बैकएंड में, ठीक है. एंड अब एपीआई का एग्जांपल तुमको मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड वेट करना. सब एपीआई बोली, ठीक है. एपीआई का मतलब समझाया, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. अब एपीआई मान लो ऐसा है, कुछ अपलोड हो रखा है एक सर्वर पे, मैंने एपीआई अपना अपलोड कर दिया. हर एक एपीआई का एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है कि अगर मैं एपीआई का इस लिंक पे कॉल करता हूँ या कुछ करता हूँ तो आई गेट दिस सर्टेन डाटा है कुछ. अब एपीआई के बेसिक 3 पार्ट बोलते हैं हम. एक होता है गेट रिक्वेस्ट जाती है एपीआई में. एपीआई में गेट रिक्वेस्ट जाती है. गेट रिक्वेस्ट मीन्स आई वांट टू गेट समथिंग फ्रॉम द एपीआई. दैट मीन्स मैं एपीआई से कुछ मांग रहा हूँ. लाइक फॉर एग्जांपल लाइक मैंने एक एपीआई बना दिया जिसपे सब स्टूडेंट्स का लिस्ट है, तो आई विल गिव अ लिंक ओवर देयर जहाँ पे एपीआई का रिक्वेस्ट जाएगा. और एपीआई का ये हो गया गेट रिक्वेस्ट. एक होता है पोस्ट. पोस्ट मीन्स आई एम सेंडिंग एपीआई सम डाटा टू डू सम स्टफ. टू डू सम स्टफ से कह सकते हो. मनी, तुमने स्क्रीन हाँ. शेयर की? ऐसा स्क्रीन शेयर अभी नहीं करा मैंने, करता हूँ मैं अच्छा भी. ठीक. हाँ ठीक है. एक गेट रिक्वेस्ट हो गया कि यू वांट टू गेट समथिंग फ्रॉम द एपीआई. पोस्ट हो जाता है तुम एपीआई को कुछ दे रहे हो कि मैं यूजर हूँ, मुझे कुछ एपीआई को डाटा देना है अपना, उसको हम पोस्ट रिक्वेस्ट में भेजते हैं. एक आता है पुट और पैच, वो आगे की चीजें हैं, दे आर बिफोर अपडेटिंग. अभी हम गेट और पोस्ट पे रहते हैं, ठीक है. सबने एचटीएमएल फॉर्म देखे हैं, मतलब अभी जैसे मैंने ने बताया होगा पोस्ट रिक्वेस्ट होती है. कोई हाँ या ना रिस्पॉन्स दे देना. नहीं, अभी मैं उतना डिटेल में नहीं जाना है, वो सब चीजें अपन अच्छा अलग से सेशन में कम ठीक है करेंगे ठीक है कवर. ठीक है. ठीक है चलो ठीक है. ये हो गया एपीआई में उनको बता दिया मैंने ऐसा होता है, ठीक है. अब एपीआई कौन यूज करता है, कैसे यूज करता है. अभी जैसे मनन ने बताया होगा कि बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं, एंगुलर हो गया, रिएक्ट हो गया एंड काफी कुछ और होता है. तो वो लाइक अगर हमने एक फ्रंट एंड बनाया है वो मेरी एपीआई से इंटरैक्ट कर सकता है. एपीआई से इंटरैक्ट कर सकता है. अब तुमको मैं कुछ स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ. कोड बहुत गंदा लंबा सा होगा बट तुमको बेसिक दिखाने लगा हूँ कि एपीआई दिखता कैसा है, ठीक है. 1 सेकेंड. दिख रहा है. हेलो, दिख रही हाँ, है क्या हो गई स्क्रीन? शेयर, हो गई शेयर. ठीक है. अब लाइक जैसे एक पोस्ट रिक्वेस्ट होती है. पोस्ट रिक्वेस्ट मींस मैं एपीआई को कुछ डाटा भेज रहा हूँ, लाइक लॉगिन और साइन अप, ठीक है. लाइक यू कैन सी ओवर हियर राउटर डॉट पोस्ट. अब एपीआई क्या करता है, मेरे को एक रिस्पॉन्स देता है यहाँ से कि आपने जो काम करा है वो पूरा हो गया, ठीक है. एक पोस्ट रिक्वेस्ट ऐसा हो जाता है. एंड देन कम्स गेट रिक्वेस्ट, ठीक है. ये पुट दिखाया मैंने तुमको. एक सेकंड, गेट रिक्वेस्ट तुमको यहाँ नहीं मिलेगी. 1 सेकंड, ठीक है. ये हो गया. लेकिन ये बात अभी एपीआई की हो गई, ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है. एपीआई एंड लाइक एपीआई ऐसा नहीं है कि हम खुद क्रिएट करते हैं. एपीआई लाइक बहुत सारी वेबसाइट्स हैं. आप कभी जैसे खोलोगे ना, स्पॉटिफाई का वेबसाइट खोल लो, इंस्टाग्राम का वेबसाइट खोल लो, नीचे जब जाओगे वहाँ पे उन्होंने एपीआई सर्विस लिखा होता है. इफ एनीवन हैज एवर नोटिस्ड, तो एपीआई सर्विस लिखा होता है. वो आप लाइक इनकी एपीआई यूज कर सकते हो टू इंटरैक्ट विद देम. एपीआई हो गया. एंड बात आ गया कि बैकएंड लाइक बनता कैसे एंड काम किससे करना है आपको उस पर. अगर मैं वेबडी की बात करता हूँ, like normally backend में you can use almost any language. जावा, जावास्क्रिप्ट करनी है, पाइथन,
रूबी बहुत लाइक ऑलमोस्ट एनी लैंग्वेज आप बैकएंड में यूज कर सकते हो, बट वेबडी में अभी लाइक जो दो मेजर यूज होती हैं आई वुड से पाइथन का डिजांगो एंड जावास्क्रिप्ट का नोड जेएस, ये दोनों सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में यूज होती है, ठीक है। एंड फ्रंट एंड की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, ये दो लाइक स्क्रिप्टिंग साइड लैंग्वेजेस है विच यू कैन यूज फॉर बैकएंड, एंड बैकएंड का तुम एक अलग दूसरा पार्ट रहेगा दैट इज डाटाबेस। डाटाबेस सब समझते हो क्या, लाइक एक प्लेस जहाँ डाटा स्टोर हो रहा है एंड ऑल, एंड डाटाबेस इज लाइक मतलब हार्ट ऑफ एनी एप्लीकेशन, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो, कुछ भी हो, डाटाबेस तो ज़रूरी है ही, ठीक है। जैसे मैंने तुमको बताया ना अभी कि अगर हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं कि एपीआई को उसमें डाटा भेजना हो अपनी तरफ से, तो ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी स्टोर्ड समवेयर, एंड लाइक जाहिर सी बात है कि वो डाटाबेस में स्टोर होती है। मतलब इनको वो बताएं क्या कि डाटाबेस ज़्यादा तो नहीं बताना है ना? नहीं बस बता दे, मतलब दो टाइप के रहते हैं हाँ ऐसे, हाँ तो बस। ठीक है। तो जैसे हाँ डाटाबेस डाटाबेस हो गया, डाटाबेस मैं तुमको बताता हूँ लाइक अभी हम अगर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो मेजरली दो डाटाबेस यूज हो रहे हैं, मोंगोडीबी एंड एसक्यूएल, ठीक है। एसक्यूएल माई सीक्वल सुना होगा आई थिंक सबने। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। Structured query language is a relational type of database. By relations I mean कि relationships बनते हैं। एग्जाम्पल कि एक यूजर है, अगर एक यूजर ने पोस्ट करी है तो उस पोस्ट का रिलेशनशिप उस यूजर के साथ है, दिस इज टाइप ऑफ अ रिलेशनल डाटाबेस, ठीक है। एंड दूसरा आ गया एक मोंगोडीबी। मोंगोडीबी इज काइंड ऑफ क्वेरी, क्या बोलते हैं, सेकंड, मोंगोडीबी इज, वन सेकंड भूल गया मैं। MongoDB is kind of document database, मतलब कि जो मेरा database स्टोर होता है as स्मॉल ऑब्जेक्ट्स डॉक्यूमेंट्स में स्टोर होता है। तुमको मैं दिखाता हूँ, तुमको दोनों डाटाबेस दिखाता हूँ मैं, ये होल्ड करना। लाइक और ऐसा होता है कि ऑब्वियसली हर डाटाबेस, कोई डाटाबेस है, मेरे को डाटाबेस से सामान कुछ, कभी कभी मेरे को डाटाबेस में सामान लेना है, कभी डाटाबेस को डाटा देना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली क्वायरीज होती हैं अलग से, एंड ऑलमोस्ट हर डाटाबेस की अलग टाइप ऑफ क्वायरीज होती है। तुमको मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड, तुमको मैं डिफरेंस दिखा रहा हूँ कि एक लाइक माई सीक्वल जो एक रिलेशनल टाइप ऑफ डाटाबेस है और एक दूसरा मोंगो जो एक डॉक्यूमेंट टाइप ऑफ डाटाबेस है, उनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है। वन सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है। हम डाटाबेस तुमको मैं डिफरेंस दिखा रहा हूँ, योर एंटायर स्क्रीन आ गई ना स्क्रीन? तो अभी हम हाँ भाई। अभी तुम देख रहे हो एसक्यूएल, जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज काइंड ऑफ रिलेशनल टाइप ऑफ डाटाबेस सिस्टम। लाइक ये देखो, इसमें डाटा देखो स्टोर कैसे, ज़्यादा चीज़ें नहीं देखनी है, तुम देख सकते हो टेबल फॉर्म में स्टोर्ड है, प्रॉपर प्रॉपर टेबल बने हुए हैं, ईच रो रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट डाटा, ठीक है। और ये डाटा का इन्फॉर्मेशन है कॉलम्स में, तुम देख पा रहे हो, जरूरी नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ, तुम देखो स्टोर कैसे है, ठीक है। ये हो गया मेरा माई सिक्वल रिलेशनल टाइप ऑफ डाटाबेस, माई सिक्वल में ऐसा स्टोर है, ठीक है। और अब आ गया मोंगोडीबी, एक सेकेंड यार, वन सेकेंड, मोंगोडीबी यार गलत खोल लिया मैंने, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, बस इतना ही बता देते हैं। जैसे अभी तुमने एक डेटाबेस देखा, एसक्यूएल तुमने देखा, उसमें टैबुलर फॉर्म में था। इधर मोंगोडीबी में टैबुलर फॉर्म में होगा ऐसा नहीं ऑब्जेक्ट्स रहता है। ऑब्जेक्ट्स फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है। हाँ, जैसे पाइथन पढ़ा होगा तो की डिक्शनरी पेयर, मतलब की वैल्यू पेयर्स रहते थे, उस हाँ फॉर्मेट में कुछ स्टोर्ड रहेगा। ठीक है। ओके। और देखो ये हो गया पॉइंट है कि पढ़ना क्या है एंड कैसे एंड क्या है बेसिकली, ठीक है। कि ऑनलाइन बहुत
कोर्सेज हैं, ब्ला ब्ला स्टफ है, बहुत है, बट लाइक देखो बैकएंड के लिए तुमको मैं 2 सजेस्ट करूंगा, एक नोड एक पाइथन, अगर तुम वेबडी में बैकएंड का सोच रहे हो, ठीक है। एंड डाटाबेस तो तुम ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट करोगे हर एक के साथ, तो डाटाबेस तो बहुत वास्ट चीज़ है, ठीक है। एंड बेसिकली आई वुड सजेस्ट कि तुम एक चीज़ एक बार में करो। जैसे अभी किसी ने पूछा था बीच पीछे कि फुल स्टैक डेवलपर एंड ऑल, अगर आप एक फुल स्टैक कोर्स करते हो, तो सच बात बता रहा हूँ, यूडेमी या कहीं से हमने भी किया था, दैट इज वेस्ट, क्योंकि कुछ भी ढंग से नहीं आएगा। गो स्टेप बाय स्टेप, कि अगर नोड कर रहे हो पूरा एक नोड एक बार ढंग से करो बैकएंड, इफ यू आप रिएक्ट कर रहे हो तो एक बार रिएक्ट पूरी ढंग से करना, ठीक है। फुल स्टैक कोर्स के चक्कर में ना जाना। एंड आई थिंक कोर्स तो सबको ऑनलाइन मिल जाते होंगे, यूडेमी वगैरह एंड ऑल फ्री के मिलेंगे, खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको भी चाहिए हो हम लोगों से मांग लेना, है ना। और तो बस यार, हो गया ना मनन। हाँ हाँ सही है। आज एक इसने पॉइंट बोला कि कहीं से भी खरीदने मत निकल जाना, तुम्हें कोर्सेरा का भी अगर कोर्स चाहिए और तुम्हें लगता है कि तुम्हें सर्टिफिकेट भी चाहिए, वैसे बता दूं सर्टिफिकेट की कुछ वैल्यू नहीं रहती है, फिर भी अगर तुम्हें सर्टिफिकेट भी चाहिए तो कोर्सेरा पे फाइनेंशियल एड भी मिल जाती है, 14 डेज रुकना पड़ेगा, तुम्हें उसका सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा उसका। तुम्हें जो भी कोर्स चाहिए खरीदना मत, बस बात सी है, चाहे Exactly. 1000 या 10,000 को लिंक मांग लो, सबको कहीं से मिल जाएगा। हम्म, एंड जो मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप जाना, सब कुछ एक साथ नहीं पकड़ना, बहुत है। ओके थैंक्स मनी। इसके साथ साथ और भी तुम मतलब बैकएंड के अंदर तुम बहुत सारी चीजें कर सकते हो, और मतलब ऐसा मान के चलना कि फ्रंट एंड तो बहुत छोटा पार्ट हो जाता है, बैकएंड बहुत वास्ट रहता है, तुम उसमें अलग अलग फीचर्स लगा सकते हो, तुम AI/ML का यूज कर सकते हो उसके अंदर, तुम वेब स्क्रैपिंग का यूज कर सकते हो, तुम और भी मतलब बहुत सारी दूसरी चीजें कर सकते हो बैकएंड के साथ में। सो ये वेब डेवलपमेंट वाला पार्ट था। नेक्स्ट मूव करते हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट की तरफ। सो प्रियांश नामा बताएगा पूरा एंड्रॉइड डेवलपमेंट के बारे में, वो लास्ट 2-3 ईयर्स से कर रहा है अच्छे से। सो प्रियांश। हाँ तो देखो, एंड्रॉइड तुमको करना है तो सबसे पहले बेसिक है जावा सीख लेना। अब जावा के अंदर 4 टॉपिक होते हैं मेन सीखने के लिए। तो बेसिकली तुम्हारा एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग है वो किसके अंदर आएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इसके 4 तुम्हारे बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, तुमको अच्छे से आने चाहिए। एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ये चारों अच्छे से पढ़ना, उसके बाद इसको जावा से पढ़ना, और उसके बाद तुम लोग फिर एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाने के लिए मतलब तुम अब कर सकते हो एंड्रॉइड डेवलपमेंट। और तुमको अगर कॉटलिन से करना है तो भी पहले जावा सीख लेना, क्योंकि आफ्टर ऑल कॉटलिन भी जावा के कोड में उसको कन्वर्ट करता है। वो बेसिकली थोड़ा सिंपल वे में होती है कॉटलिन, बस ये इतना डिफरेंस होता है। तो अभी तुमको मान लो एंड्रॉइड ऐप बनाना है, जिसको कुछ नहीं आता वो कैसे स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले इंटरफेस बनाना सीखना तुम लोग, कि टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, एडिट टेक्स्ट क्या होता है, रेडियो बटन और चेक बॉक्स होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है, फ्लोटिंग बटन क्या होता है, ये सब तुम लोग सीखना। लेआउट्स क्या होते हैं, वो सारे काफी सारे इंटरफेस कंपोनेंट्स होते हैं, एंड्रॉइड कंपोनेंट्स, तो वो सब तुम सीखना कि कैसे लगाते हैं। और व्यूज को कंस्ट्रेंट में कैसे करना है, कब करना है, लेआउट क्या होता है, लेआउट वेट क्या होता है, वो सब तुमको इसमें सीखने मिलेगा। उसके बाद तुम नेक्स्ट टॉपिक लेना कि इनपुट तुम दे रहे हो उस पर तुमको कोई रेस्पॉन्स मिल रहा है। जैसे तुमने बटन क्लिक करा तो कलर चेंज हो गया, काउंटर इंक्रीज हो गया, और तुम स्टॉप वॉच का ऐप बना रहे हो तो वो इनपुट और रेस्पॉन्स पे बनता है। तो ये चीज तुम सीखना। फिर उसके बाद तुम मल्टी स्क्रीन पे जाना, कि एक से ज्यादा स्क्रीन का मैंने ऐप बनाया, इसमें 4 स्क्रीन है, 5 स्क्रीन है, और आगे पीछे स्क्रीन में मैं कैसे मूव करूं। और तुमको मतलब ये जो स्क्रीन्स होती हैं एंड्रॉइड में वो स्टैक के फॉर्म में स्टोर होती है। स्टैक तो पढ़ा होगा जैसे तुमने अपनी डेटा स्ट्रक्चर में। तो इसको कैसे हैंडल करूं, कौन सी स्क्रीन नीचे रखूं, कब कौन सी स्क्रीन ऊपर रखूं, वो सब तुम सीखना इसके अंदर अच्छे से। फिर नेक्स्ट तुम्हारा आता है नेटवर्किंग। अब जैसे तुम जो भी तुम आजकल जितने भी ऐप यूज करते हो, तो नेटवर्किंग का उसमें मेन रोल होता है। जैसे इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, उसमें जितना भी तुम्हारे पास डेटा है वो सारा इंटरनेट से आ रहा है। तो मान लो तुम ऐप बना रहे हो, तुम अर्थक्वेक का एपीआई यूज कर रहे हो, जैसे मनी ने बताया था कि एपीआई से तुम डेटा फेच भी कर सकते हो और उसको सेंड भी कर सकते हो। तो वो सब तुम नेटवर्किंग में सीखोगे कि नेटवर्क बनता कैसे है, थ्रेड क्या होता है, मेन थ्रेड क्या होता है, साइड थ्रेड उसके साथ में चलेगा नहीं चलेगा, कब चलाना चाहिए, वो सब चीज तुम यहाँ पे सीखोगे। और फिर नेक्स्ट चीज तुम्हारी आती है, अब तुमने जो नेटवर्क से डेटा लिया है उसको तुम स्टोर करोगे। जो तुम्हारे पास स्टोर डेटा है उसको तुम आगे भेजना चाहते हो नहीं भेजना चाहते हो, तो ये सब तुम्हारा डेटा स्टोरेज में आता है। कि मैंने एक स्क्रीन में अगर अपना नाम लिख दिया और मैं दूसरे स्क्रीन पे चला गया
तो जब मैं वापस आऊँ तो मेरे पास वो नाम होना चाहिए, वो मिटना नहीं चाहिए वहां से। तो ये सारी चीजें आती है इसकी। मैं तुमको कोर्स जितने भी हैं, अलग अलग कोर्स हैं, 5 कोर्स हैं, मैं सबकी लिंक तुमको दे दूंगा, वहां से फ्री कोर्स हैं, पढ़ लेना। और अगर तुम उस कोर्स को फॉलो नहीं भी करते हो तो उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो देख लेना, सीख कहीं से भी सकते हो, और बस उन प्रोजेक्ट्स को बना के देख लेना और बन जाने चाहिए तुमसे। फिर अब एंड्रॉइड में होता क्या एक्चुअली में, 4 कंपोनेंट, इसको बोलते हैं 4 पिलर्स ऑफ एंड्रॉइड। तो पहली होती है तुम्हारी एक्टिविटी। अब देखो एक्टिविटी क्या होती है, तुमने कोई भी ऐप खोला तो जो तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है वो एक्टिविटी है। एक सेटिंग्स वाला पेज होता है, एक तुम्हारी चैट एप्लीकेशन, जैसे व्हाट्सएप पे एक तो रहता है कि तुम किससे चैट कर रहे हो, वहां पे मैसेजेस आ रहे हैं। एक तुम्हारी स्क्रीन होती है जिसपे केवल तुम्हारे नाम होते हैं कि किस किस से तुम्हारी चैट्स चल रही हैं। एक सेटिंग होती है, अलग अलग एक्टिविटीज होती है। तो अगर कोई भी 2 एक्टिविटी है तो वो एक्टिविटी तब कहलाएंगी जब वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होंगी। तो ऐसे एक फ्रेगमेंट भी होता है, लेकिन वो मतलब जैसे 3 फ्रेगमेंट होते हैं लेकिन वो एक ही एक्टिविटी पे होते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो अलग अलग स्क्रीन है, लेकिन वो फ्रेगमेंट एक ही होता है, एक्टिविटी अलग होती है। तो एक होती है तुम्हारी ये एक्टिविटी हो गया। फिर अगला आता है सर्विस। सर्विस क्या होता है, लेट से तुमने कोई सॉन्ग प्ले किया, यूट्यूब पे प्ले किया, तुम बैक बटन दबाते हो तो वो बंद हो जाता है, लेकिन तुम स्पॉटिफाई पे प्ले करोगे तो वो नहीं होता है, तुम्हारा ऐप हट जाएगा स्क्रीन से, लेकिन तुम्हारा म्यूजिक प्ले कर रहा है क्योंकि वो सर्विस है। तो सर्विस के लिए जरूरी नहीं कि एक्टिविटी हो। उसके बाद अगला आता है तुम्हारा कंटेंट प्रोवाइडर्स। कंटेंट प्रोवाइडर कैसे समझेंगे, जब 2 ऐप एक साथ आके तुम्हारे काम को इजी बनाते हैं। 2 ऐप्स एक साथ आ रहे हैं और उनके बीच में कंटेंट प्रोवाइडर एक क्लास होती है कंटेंट प्रोवाइडर की, वो यूज हो रही है। जैसे व्हाट्सएप पे मुझे प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करनी है तो मैं गैलरी का यूज करता हूँ व्हाट्सएप के अंदर से। मुझे इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड करनी है, वहां मैं गैलरी का यूज करता हूँ। तो ये जो 2 ऐप्स एक साथ आ गए तो इसको बोलते हैं कंटेंट प्रोवाइडर। फिर अगला ब्रॉडकास्ट रिसीवर है। इसको देखो, इसको ध्यान से समझना। इसमें क्या होता है कि कोई भी तुम्हारे पास सिग्नल है, उसको तुम तो उसकी तुम इवेंट की लिस्ट कैसे बनाओगे, लॉग कैसे बनाओगे, कब किसको हैंडल करोगे, ये सब आता है। ये इंपॉर्टेंट होता है लास्ट वाला। अभी जैसे मान लो तुम व्हाट्सएप पहली टाइम इंस्टॉल किए तो उस पे तुमको बोलता है कि ओटीपी आने वाला है, तो ओटीपी जैसे आता है वो एंटर हो जाता है, तो उसको कैसे पता ओटीपी आ गया, तो वो ब्रॉडकास्ट रिसीवर का काम होता है। और जैसे तुम किसी दूसरी स्टेट में जाते हो तो तुम मैसेज आता है ना, सही आपका स्टेट चेंज हो गया, रोमिंग वगैरह, वो उसको कैसे पता, वो भी ब्रॉडकास्ट रिसीवर का काम होता है। और तुम कोई एप्लीकेशन कर रहे हो एंटी थेफ्ट से रिलेटेड, तो तुम्हारी कोई चीज चोरी होगी तो तुमको मैसेज आएगा, तो वो भी ब्रॉडकास्ट रिसीवर का रोल। तुमको नोटिफिकेशंस आते हैं व्हाट्सएप पे, जैसे मैंने मनन को मैसेज किया तो कैसे पता कि मनन के फोन को कैसे पता मैंने अभी मैसेज किया है, तो वो ब्रॉडकास्ट रिसीवर का काम होता है, उसका पूरा नोटिफिकेशन बनाना होता है, कैसे क्या करना है। और ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट होता है, इस पे ज्यादा ध्यान देना। बाकी तो बस। और एक ये फ्लटर वाला होता है। फ्लटर में तुमको अगर फ्लटर से करना है तो पहले ये सारा कंप्लीट करना, उसके बाद जाना फ्लटर पे। फ्लटर पे तुम दोनों एक साथ बना सकते हो, iOS और एंड्रॉइड दोनों एक साथ मिल जाते हैं। लेकिन फ्लटर के साथ ये है कि तुम्हें ये सब देखने को नहीं मिलता है कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये तुमको पता नहीं चलता है। बस तुमको विजेट्स बनाने होते हैं, एक के अंदर एक के अंदर एक, और ऐप बन जाता है बस। और किसी को कोई डाउट है? और फ्लटर वेब डेवलपमेंट के लिए भी कई कई जगह पे यूज करते हैं कुछ लोग। वेब के लिए वो भी नया चालू है, वेब के लिए हम यूज कर रहे हैं उसको। फ्लटर राइट बेसिकली गूगल का है, तो वो पूरा मार्केट लेने की कोशिश करेगा, और क्या। राइट। सो किसी को डाउट्स हो तो चैट में लिख दो। और ओवरऑल अगर अभी ज्यादा नहीं भी समझ आ रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन सब के अलग से वर्कशॉप लगाएंगे और सारी चीजें कवर करेंगे। ठीक है, अभी सब ओवरव्यू देना चाहते हैं कि क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट मूव करते हैं गेम डेवलपमेंट के लिए। सो गेम डेवलपमेंट कार्तिक सर बताएंगे। वो 3rd ईयर में है और अभी उनकी इंटर्नशिप चल रही है, टोटलिटी कॉर्प करके है उस कंपनी में। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इन लोगों ने बनाए, लिंक्डइन पे भी चेक कर सकते हो। सो कार्तिक सर टेक ओवर करेंगे। हाँ भाई, तो अपन स्टार्ट करते हैं। मतलब बहुत सारे जने होंगे यहाँ पे जो खेलते ही होंगे, ऑब्वियसली बचपन से अभी तक गेम खेल ही रहे होंगे। किसी घर में कोई किसी टाइप का जॉनरा पसंद करता होगा, कोई किसी टाइप का जॉनरा पसंद करता होगा। तो अपन मतलब स्टार्ट करते हैं कि ऐसा है ना कि बहुत सारे जने सोचते हैं कि यार गेम डेवलपमेंट में जाना है और बस डेवलप करना चालू कर देंगे सीधा, कि उनको पता नहीं होता कि कितनी डोमेन्स होती है। और सच बताऊं, मुझे भी नहीं पता था कि यार, मेरे को बस इतना पता था कि गेम डेवलपमेंट करना है और घुस जाते हैं।
तो ये नहीं पता था क्या क्या डोमेन्स होती है, तो इसके अंदर बहुत सारी डोमेन्स होती है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है इसमें, क्योंकि इंडिया में गेमिंग स्टूडियोज बहुत कम है जो हायर करते हैं बेसिकली गेम डेव के लिए। तो इसके अंदर काफ़ी डोमेन्स है, जैसे गेम प्ले प्रोग्रामर है, तो जिसको कोडिंग अच्छी आती है, जो लॉजिक अच्छे से बना लेता है, जिसको पता है कि पर्टिकुलर चीज़ कब यूज़ करनी है। जैसे प्रियांश ने बोला था ना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज़ बहुत काम आती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज़ और डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि वो गेम डेव के अंदर चीज़ों को यानी कि कोड को ऑप्टिमाइजेशन का काम करती है यहाँ पे। तो गेम प्ले प्रोग्रामर एक पोजीशन होती है, मतलब देखो जैसे तुम में से गेम जो खेलता हो, मान लो पबजी का एग्जांपल ले लो, तो पबजी में जो तुम्हें प्लेयर शूट करता हुआ दिख रहा है सामने, जो तुम्हें शूट करते वक्त तुम लोग जब किसी पर्टिकुलर की पे क्लिक करते हो या फिर फोन पे टैप करते हो तो शूट होता है। तो दैट्स ऑल डन यूजिंग कोडिंग पार्ट। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक डोमेन है। तो अब दूसरा अपना ये भी आता है कि गेम डिजाइनर होता है। गेम डिजाइनर तुम्हारा ऐसा होता है कि वो गेम कैसा बनेगा, वो पहले पूरा गेम का प्लॉट बनाया जाता है कि किस जॉनरा का गेम बनना चाहिए। जैसे बहुत सारे जॉनरा होते हैं ना, कि फर्स्ट पर्सन शूटर है, कि थर्ड पर्सन शूटर है, या रोल प्लेइंग गेम्स हैं। तुम लोगों में से ऑब्वियसली बहुत जने खेलते होंगे, बहुत जनों को इंटरेस्ट होगा, मतलब फैसिनेट करता होगा कि यार ये कैसे होता है, या फिर बहुत सारी चीजें होती है ऐसे इन्वॉल्व इसमें। तो गेम डिजाइनर एक चीज होती है बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा, मतलब बोल सकता हूँ मैं कि बहुत ज्यादा क्रिएटिव पोस्ट है वो, इन टर्म्स ऑफ कि गेम कैसा बनना चाहिए, कि गेम के पीछे का आइडिया क्या होगा। तो वो गेम डिजाइनर्स की टीम बैठ के बनाती है। उसके बाद गेम तो दूसरी नया डोमेन जो आता है वो आता है अपना एआई प्रोग्रामर्स का। अब हर गेम मल्टीप्लेयर गेम तो होता नहीं है, ऑब्वियसली बहुत सारे सिंगल प्लेयर गेम भी होते हैं, तो उसके अंदर अपन को एआई चाहिए होता है। और एआई जो डोमेन है ये बहुत ज्यादा वास्ट है, ये बहुत हल्के में नहीं ले सकते इसको, क्योंकि इसके अंदर मशीन लर्निंग आ जाता है, इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाता है। और ये नॉर्मल मतलब कोई जो सिर्फ गेम प्ले प्रोग्रामर ऐसे मतलब जो प्लेयर को कंट्रोल करते हैं, सपोज अपन पबजी खेल रहे हैं तो अपन अपने प्लेयर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसकी कोडिंग गेम प्ले प्रोग्रामर अच्छे से कर सकता है। बट स्पेसिफिक कंपनीज होती हैं जो सिर्फ एआई के लिए एआई स्पेसिफिक स्किल्ड जो होते हैं उनको हायर करती है। जैसे हिटमैन का नाम सुना होगा तुमने, तो हिटमैन की जो कंपनी है आईओ इंटरएक्टिव, वो मोस्टली इसी पर्टिकुलर पोजीशन जो एआई प्रोग्रामर की है, इसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए वो हमेशा मतलब अपनी जॉब पोस्ट करती रहती है। तो एआई अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, तो कभी भी इसको आपस में क्लब नहीं करना है अपन को, क्योंकि इसके अंदर एमएल आ जाता है, एआई आ जाता है। फिर अपना बहुत लोग ये भी होता है कि जिसको इंजीनियरिंग में आ तो गए, बट किसी की ब्रांच एमई है, किसी की ईसी है, किसी की कुछ है, बट उसको मन नहीं लग रहा है अपनी ब्रांच में। तो कितने जने ये भी होते हैं कि वो डिजाइनिंग पार्ट में चले जाते हैं, कि उनको डिजाइनिंग या फिर मॉडलिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं उन पे काम करने में मजा आने लगता है। तो बहुत गेम्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर मैप्स की वजह से बंदे खेलना छोड़ देते हैं गेम को, क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर गेम का मैप तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है, उसके विजुअल्स पसंद नहीं आ रहे, कैसा गेम है, उसके अंदर ज्यादा इंटरफेस बढ़िया नहीं है, उसका जो यूआई पार्ट है, तो यूजुअली लोग छोड़ देते हैं उसको खेलना, क्योंकि ग्राफिक्स आज के टाइम पे बहुत चाहिए होते हैं। जो भी मतलब जो गेमर्स हैं एटलीस्ट उनको चाहिए होता है खेलने के लिए कि यार विजुअल्स अच्छे हो, नहीं तो बंदा ट्रेलर देख के ही डिसाइड कर लेता है कि नहीं मुझे नहीं खेलना है गेम। तो उसके लिए एक और बहुत क्रिएटिव या फिर बोल सकते हैं बहुत अच्छी एक और पोस्ट होती है, वो होती है अपनी लेवल डिजाइनर की, कि तुम मैप कैसे बनाना चाहते हो। और मैप बनाने के लिए बनाते वक्त बहुत मजा आता है, लिटरली बहुत मजा आता है। और एक चीज होती है कंसेप्ट आर्ट। कंसेप्ट आर्ट ऐसा होता है कि तुम 3D, जैसे तुम जो गेम खेल रहे हो, जिस मैप पे तुम गेम खेल रहे हो वो तुम 3D में खेल रहे हो, बट कंसेप्ट आर्ट इज समथिंग विच इज मेड इन 2D, जो तुम्हें फिर फाइनली उसके बाद ऐसे वो पिलर है, बेसिकली पिलर की तरह काम कर रहा है वो जो 2D कंसेप्ट आर्ट में, क्योंकि जो मैप बनता है वो 2D मैप होता है, वो पिलर की तरह काम करता है, फिर तुम उसको 3D में लेवल डिजाइन करते हो। तो कंसेप्ट आर्टिस्ट भी बहुत अच्छी एक कोर्स होती है इसके अंदर। फिर आते हैं अपन कैरेक्टर आर्टिस्ट पे। अब कितने गेम्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर कैरेक्टर्स जो होते हैं, जो एनिमीज होते हैं, जो भी होता है, वो देखे भी नहीं होते लोगों ने। अगर सपोज किसी ने हेलो खेला हो यहाँ पे, तो हेलो ऐसा गेम है जिसके अंदर बहुत सारे जो एनिमीज हैं वो बहुत अजीब दिखते हैं, बहुत ज्यादा अजीब दिखते हैं। तो बहुत सारे गेम्स हैं जिसके अंदर अजीब दिखते हैं एनिमीज, तो उनके लिए अलग से उनकी कैरेक्टर आर्टिस्ट जो होते हैं उनके लिए बहुत मेहनत लगती है। तो उसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी होते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कैरेक्टर आर्टिस्ट एक कैरेक्टर बनाने के अंदर। और भी दूसरी पोस्ट जो होती है, जैसे एनिमेटर होता है, एनिमेटिंग होती है, तो एनिमेशन जो तुम्हारा हो रहा है वो कोई सिंपल गेम प्ले प्रोग्रामर अगर कोई है या कोई लेवल डिजाइनर तो वो नहीं कर सकता। कोई पर्टिकुलर फील्ड जो सिर्फ एनिमेटिंग ही करता हो जो बंदा, उसके लिए बहुत अच्छी फील्ड है ये।
फिर तो दूसरी पोस्ट है जो एज सच इतना ज़्यादा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है गेम डेवलपमेंट में, या फिर मतलब बाकी चीज़ में बोल सकता हूँ कि मार्केटिंग में आ जाती है, मतलब मोनेटाइजेशन में आ जाती है। जैसे क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टर है जो कि चलता ही रहता है, वो रेगुलर चलता रहता है गेम के दौरान। तो ये सारी पोस्ट है basically। फिर किसी को कुछ भी दिक्कत हो ना तो बीच में पूछ सकता है आराम से, कोई हिचक मत करना, मैसेज डाल देना यहाँ पे चैट पे, या फिर माइक म्यूट ऑफ करके बोल देना, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है, पूछ लेना कुछ भी हो तो। फिर बहुत सारे ऐसे हैं कि काफी जनों को दिक्कत होती है कि वो कौन से प्लेटफॉर्म से चालू करे। अगर सपोज किसी को इंटरेस्ट भी है गेम डेवलपमेंट में, तो वो कौन से प्लेटफॉर्म से चालू करे। तो पर्सनली मैंने अनरियल इंजन से चालू किया था। और हाँ, गेम डेव में भी होता है, जावा यूज होता है, बट हाँ मैं यहाँ इस पे भी आता कि गेम डेवलपमेंट में ऐसा होता है कि सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज यूज करी जाती है वो होती है C++ और C#। और C++ जो होती है वो बेसिकली अनरियल इंजन में यूज होती है। एक ये वो सॉफ्टवेयर है गेम डेवलपमेंट के लिए जो तुम्हें अवेलेबल हो जाएगा। मतलब काफी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे अनरियल इंजन है, यूनिटी है, रोब्लॉक्स है, माइनक्राफ्ट है, कंस्ट्रक्ट 3D है, पाई गेम है। जैसे पाई गेम में पाइथन यूज होती है, यूनिटी में C# यूज होती है, अनरियल इंजन में C++ यूज होती है। तो ऐसा होता है कि जब कंपनीज क्या करती है ना, पोजीशन निकालती है किसी भी पर्टिकुलर उसके लिए, तो वो उसके अंदर मोस्टली पूछती है आपको C++ या C# एंड अलॉन्ग विद द डेटा स्ट्रक्चर। और उसमें ऐसा होता है कि तुम्हें पहले अगर तुमने वो अप्लाई कर दिया तुमने सीधा, एंड यू हैव दैट मच ऑफ स्किल्स, देन यू विल गेट अ रिस्पांस, एंड इन दैट रिस्पांस यू हैव टू कंप्लीट अ टेक्निकल टेस्ट। वो क्लियर कर दिया तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो बहुत अच्छा होता है। अब मैंने पर्सनली मैं उस पर था कि मैंने अनरियल इंजन से चालू किया था। तो अनरियल इंजन में बहुत अच्छा एक फीचर है, वो ये है कि जिसको कोडिंग नहीं आती है वो उसमें सीधा गेम डेवलप कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर एक दूसरा टर्म होता है ब्लूप्रिंट्स करके। ब्लूप्रिंट्स के अंदर ऐसा होता है कि आपको नोड नेटवर्क क्रिएट करना होता है। तो प्रोग्रामर को पहले से जरूरी नहीं है कि उसको, सॉरी, अगर कोई नॉन प्रोग्रामिंग फील्ड से है तो उसको जरूरी नहीं है कि उसको प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट आने चाहिए। तो बेसिकली आप सीधा ब्लूप्रिंट्स की मदद से भी अनरियल इंजन में गेम डेवलप कर सकते हो। बट मैंने चालू किया था, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई चालू करना चाहता है, कि अच्छे से सीखना चाहता है, एक मतलब डीमोटिवेट होकर वापस से बैक नहीं होना चाहता है, तो यूनिटी से चालू करें, क्योंकि अनरियल इंजन बहुत बहुत ज्यादा वास्ट तरीके से आपको फीचर्स प्रोवाइड करेगा और बहुत कंफ्यूज हो जाओगे उसको करने में, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो यूनिटी है, वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे तुम चालू कर सकते हो। अब बात आती है कि तुम कहाँ से पढ़ना चालू करो इसके लिए। तो यूनिटी और अनरियल इंजन और रोब्लॉक्स, ये तीन इंजन हैं जिनके डॉक्यूमेंटेशन हैं, और ये खुद के इनकी ही साइट पे वीडियो लेक्चर्स पे कोर्सेज हैं जो कि पूरी तरीके से फ्री हैं, और बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं। तुमको कहीं से यूडेमी से, यूडेसिटी से, कोर्सेरा से खरीदने की जरूरत नहीं है। तुम सीधे इन ही पर्टिकुलर इंजन की साइट पे जाओ, तुम्हें कोर्सेज मिल जाएंगे, और वो कोर्सेज बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के। तो तुम, मेरा सजेशन होगा कि अगर गेम डेवलपमेंट करना चाहते हो तो यूनिटी से चालू करो, यूनिटी विल हेल्प यू लॉट, ठीक है। और अब आता है कि सब इंजन्स के अंदर अपने अपने टेम्पलेट्स होते हैं, तो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे। जब तुम कोर्स लोगे ना तो तुम्हें वो पूरा बेसिक से समझाएंगे, और लिटरली तुम्हें बहुत मजा आएगा। अगर तुम क्रिएटिव साइड जाना चाहते हो, किसी का मतलब है इसमें कि तुम्हें ये गेम डेवलपमेंट फैसिनेट करता है, तो ऑब्वियसली तो मेरे बहुत अच्छा चीज़ है तुम्हारे लिए। अब जैसे हर एक के लिए तो मतलब मैंने इंजन बता दिया कि तुम किस इंजन से चालू कर सकते हो। अब जैसे यूनिटी है, या फिर बोल सकते, सॉरी हाँ, अनरियल इंजन है। अब अनरियल इंजन के अंदर सब तरीके की मतलब तो बोल सकते हैं कि सब डोमेन्स एक ही में इंटीग्रेटेड है। मतलब गेम प्ले प्रोग्रामर है अगर, तो वो कोडिंग कर सकता है अनरियल इंजन के अंदर यूजिंग एन IDE जो विजुअल स्टूडियो है, सबने सुना होगा उसका नाम। तो विजुअल स्टूडियो से अपन अनरियल इंजन में कोड करके इंटीग्रेट कर सकते हैं जो भी आप इंटरेक्टिव पार्ट दिखाना चाहते हो अपने गेम में। दूसरा है कि दूसरे सॉफ्टवेयर जो कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हैं, कि आप चाहते हो कि आपको सिर्फ कैरेक्टर आर्टिस्ट ही बनना है, कि आपको कैरेक्टर आर्टिस्ट बनना है, तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे एक सॉफ्टवेयर है ब्लेंडर करके। ब्लेंडर इज समथिंग विच इज नॉट यूज्ड इन इंडस्ट्री एज सच। तो ब्लेंडर इतना ज़्यादा इंडस्ट्री ओरिएंटेड नहीं होता है। ऑटोडेस्क माया करके एक सॉफ्टवेयर है जिसका स्टूडेंट वर्जन आपको मिल जाएगा। मतलब कोई भी स्टूडेंट आईडी अपनी, मतलब जो भी तुम्हें कॉलेज आईडी मिली उसके थ्रू जब तुम डाउनलोड करोगे ऑटोडेस्क माया को, तो वो तुम्हें मिल जाएगा। और माया पर्सनली मैंने यूज नहीं किया है, तो लेकिन मैं जिस कंपनी में भी काम कर रहा हूँ उसके अंदर काफी लोग यूज करते हैं, तो दे हैव सजेस्टेड मी कि हाँ ये काफी अच्छा है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि हाँ, ऑटोडेस्क माया जो है वो तुम्हें काफी चीज में हेल्प करेगा। जैसे तुम्हें मॉडलिंग करनी है तो वो बहुत अच्छा होगा, तुम्हें एनिमेशन क्रिएट करना है तो वो बहुत अच्छा होगा, तो उसके लिए वो बहुत अच्छा है। अब सपोज किसी को सिर्फ
करना है तो कंसेप्ट आर्ट के लिए तुम उसमें जा सकते हो, एडोबी फोटोशॉप, दैट्स वेरी नाइस सॉफ्टवेयर फॉर दैट। तो एडोबी फोटोशॉप तुम्हें कंसेप्ट आर्ट में बहुत मदद करेगा, क्योंकि तुम अगर कोई लेवल डिजाइन कर रहे हो ना, तो उसके लिए तुम्हें सिर्फ ऐसे ही सॉफ्टवेयर आने चाहिए जो तुम अपनी क्रिएटिविटी जहाँ पे पहले रफ फिगर में बना सको, जो कि एडोबी फोटोशॉप बहुत अच्छे से तुम्हें हेल्प करेगा उस चीज में। सपोज तुम कहीं घूमने गए हो, किसी पार्क में गए हो, किसी हिल स्टेशन गए हो, कहीं भी गए हो, तुमने वहां पे कोई फोटो ली, तो उस फोटो के रेफरेंस की मदद से जब तुम उस फोटो को एडोबी फोटोशॉप में जब तुम उसको मैनिपुलेट करोगे, उस फोटो को, वो मैनिपुलेशन करने के बाद तुम जो चीज तुम चाह रहे हो, अगर वो तुमने मैनिपुलेट करके फाइनल आउटपुट ले आए उस फोटो पे, उस फोटो की मदद से फिर तुम दूसरे सॉफ्टवेयर यूज करके अपना लेवल डिजाइन चालू कर सकते हो। और लेवल डिजाइन के लिए जो तुम अनरियल इंजन है या यूनिटी है या रोब्लॉक्स है, इस पर डायरेक्टली कर सकते हो लेवल डिजाइन। उस पर डायरेक्टली तुम लेवल बनाना चालू कर सकते हो। ब्लेंडर पे भी कर सकते हो। ब्लेंडर इंडस्ट्री ओरिएंटेड नहीं है, बट वो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। तुम उसमें बहुत चीजें सीख सकते हो, बहुत सारी चीजें। बेशक टाइम लगेगा उसमें, हो सकता है 3 महीने भी लग जाए, बट वो बहुत कुछ सिखाएगा। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है वो गेम डेवलपमेंट में, मतलब मॉडलिंग के लिए, एनिमेशन के लिए, लेवल डिजाइनिंग के लिए, सबके लिए। अब आती बात की एक पोस्ट और होती है, वो होती है अपनी गेम एनवायरनमेंट आर्टिस्ट की। अब तुमने गेम खेलना चालू तो कर दिया, अब तुमने देखा कि मैप ऐसा है, अब बट मैप के अंदर कुछ चीजें होती हैं, जैसे क्रेट्स रखी हुई होती हैं, क्रेट्स के अलावा बाइक रखी हुई होती हैं, गाड़ियां होती है, वॉट एवर, बिल्डिंग है, कुछ भी है, ये सब चीजें कहलाती है एसेट्स। तो ये एसेट्स जो भी होते हैं, ये अपनी गेम एनवायरनमेंट आर्टिस्ट अपन को बना के देते हैं। और गेम एनवायरनमेंट आर्टिस्ट और लेवल डिजाइनर ये दोनों कोलैबोरेटिवली काम करते हैं, ताकि जो हम लेवल डिजाइन कर रहे हैं उसके अंदर एसिड्स की प्लेसिंग कहाँ करनी है, वो अच्छे से गेम एनवायरनमेंट आर्टिस्ट जब हमको एसिड्स देगा, हम तभी प्लेस कर पाएंगे, और वो हमारा पूरा का पूरा उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके बाद फाइनली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं जिस सॉफ्टवेयर पे हम लेवल डिजाइन कर रहे हैं। ओके, फिर एक होता है कि ये जो सारे एसेट्स बन के आते हैं अपने पास, अब उन एसेट्स के ऊपर टेक्सचर आप किस टाइप का चढ़ाना चाहते हो, किस टाइप का टेक्सचर आप चाहते हो, स्टोन टेक्सचर हो, वुड टेक्सचर हो, किस टाइप का टेक्सचर हो, तो उसके लिए एक अच्छा सॉफ्टवेयर है सबस्टेंस पेंटर, उसके अंदर आप कर सकते हो। बट ऐसा भी है कि अनरियल इंजन में हर चीज है, इट्स ऑल इन वन सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हर टाइप की चीज कर सकते हो। इसलिए उससे लोग इंडस्ट्री में बहुत यूज करते हैं, क्योंकि वो ऑल इन वन सॉफ्टवेयर है, इसी चक्कर में उसको यूज किया जाता है। बट वो थोड़ा वास्ट है एक बिगिनर के लिए स्टार्ट करने के लिए, तो मैंने वो गलती की थी। बट देन फाइनली मेरे को वक्त लगा, मेरे को 6 महीने लगे, पर फिर 6 महीने बहुत ज्यादा टाइम होता है, बहुत ज्यादा टाइम होता है 6 महीने, क्योंकि इस 6 महीने के गैप में कितनी बार ऐसा मन करता है कि यार छोड़ देते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि यार कहीं आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, तो लीव कर देते हैं। तो यूनिटी इज समथिंग फ्रॉम विच यू कैन स्टार्ट। फिर तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, और एक एक सॉफ्टवेयर और है जी ब्रश करके। जी ब्रश जो है वो क्रिएटिव जो डिजाइनर, मतलब हर चीज आती है उसमें, जैसे लेवल डिजाइनिंग आता है, कंसेप्ट आर्ट आता है, गेम एनवायरनमेंट आर्ट, मतलब मॉडलिंग कर सकते हो, एनिमेशन कर सकते हो, कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए भी वो अच्छा है। बट जी ब्रश इज समथिंग वो बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। तो पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि ब्लेंडर या माया, इन दोनों सॉफ्टवेयर के लिए तुम जा सकते हो, जहाँ पे तुम डिजाइनिंग सीख सकते हो, या फिर तुम अपना मतलब जितनी क्रिएटिविटी है तुम यहाँ ब्लेंडर और माया में शो कर सकते हो। जी ब्रश थोड़ा एडवांस सॉफ्टवेयर है, तो उस पर बाद में जाना ज्यादा बेटर है। और ठीक इसी तरीके से अगर तुम गेम डेवलपमेंट में स्टार्ट करना चाहते हो, तो यूनिटी इज बेटर इन कम्पेयर टू अनरियल। रोब्लॉक्स मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि फीचर्स प्रोवाइड नहीं करता है उतने, कोई छोटी से छोटा चीज या कोई छोटा छोटा मैकेनिक भी तुम्हें इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए तुम्हें मान लो यूनिटी में अगर तुम 1 लाइन का कोड लिख रहे हो, तो वही तुम्हें रोब्लॉक्स में 8 से 10 लाइन का लिखना पड़ेगा। तो रोब्लॉक्स में मेरे एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने उस पर किया है डेवलप गेम मेरे इंटर्नशिप के दौरान, तो मैं उस एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि रोब्लॉक्स में सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें स्कोप नहीं है, इंडस्ट्री में नहीं मांगा जाता है रोब्लॉक्स। तो यूनिटी एंड अनरियल सबसे ज्यादा जो जॉब एप्लीकेशंस निकलती हैं वो निकलती हैं यूनिटी के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री में उसको बहुत यूज किया जाता है, क्योंकि इट्स इजी टू अंडरस्टैंड एट फर्स्ट ग्लांस, क्योंकि बिगनर्स जो होते हैं वो यूनिटी से स्टार्ट करते हैं। फिर किसी को कोई क्वेश्चन है, या मैं बोला जा रहा हूँ यार बस? बेहिचक होके पूछ सकते हो यार। हम्म, हाँ, इंडी का बताता हूँ मैं कि इंडी गेम डेव के बारे में, मतलब मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इंडी गेम डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है पेशेंस की। अगर तुम्हारे पास पेशेंस है, और फिर अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो, और एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है कि तुम वो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे एसेट्स होते हैं जो तुम्हें खरीदने पड़ते हैं अपने गेम में डिप्लॉय करने के लिए।
तो अगर तुम इंडी गेम डेव कर रहे हो तो तुम्हें पहले तो फंड्स की जरूरत होगी, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा पेशेंस। पेशेंस बहुत ज्यादा चाहिए। अगर तुम सपोज कुछ पर्टिकुलर चीज इंप्लीमेंट कर रहे हो और वो तुम करते करते रह गए, तो ये बहुत ज्यादा दुख देता है। तुम बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि तुम पीछे हट जाओ उस चीज से। ठीक है, तो बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए। दूसरा, हम लोग बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। प्रभात, आप है ना मनन से पूछ लेना, मनन बता देगा आपको। सर उसके लिए मैं YouTube पे शेयर कर दूंगा पूरी की पूरी वीडियो, तो वहां पे देख लेना जिसको जो भी चीज बाद में देखनी है। ओके ओके, हाँ ठीक है। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि बहुत सारे अपन मतलब अपन में ही यूजुअल टेंडेंसी होती है कि अपन को कोई काम मिला है, सपोज असाइनमेंट भी मिला है, तो मान लो एक हफ्ते बाद उसकी डेडलाइन है, तो अपन उसको टालते रहते हैं कि यार कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। एट द एंड ऑफ द डे हम उसको 1 घंटा पहले करते हैं असाइनमेंट को। ठीक है, तो वो सेम चीज डेवलपर्स के साथ हो सकती है जो इंडी डेव कर रहे हैं, क्योंकि दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डेडलाइन। अगर वो उनके पास डेडलाइन नहीं है तो उसको प्रोक्रेस्टिनेशन कर करके वो आगे बढ़ाते जाएंगे, और जो चीज अगर सपोज 7 दिन में हो जाने वाली होगी वो 1.5 महीना ले लेगी। तो एक बहुत ज्यादा आपको फोकस्ड होना चाहिए और बहुत ज्यादा आपको डेडलाइन मार्क करके रखनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, तभी जाके आप इंडी गेम डेव कर सकते हो। और इंडी गेम डेव इज नथिंग डिफरेंट देन अदर गेम डेवलपर्स, बस यू नीड टू हैव स्किल्स और एक पर्टिकुलर डोमेन आपको फिक्स कर लेना है। क्योंकि आप अगर ये सोचोगे कि हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है कि आपको बहुत सारे डोमेन एक साथ फैसिनेट करेंगे कि यार ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, बट व्हाट माय ओपिनियन इज कि किसी एक पर्टिकुलर डोमेन से चालू करो, उसको अच्छे से कोशिश करो कि हाँ उसको तुम अच्छे से ग्रेस्प कर पा रहे हो। और इंडी गेम डेव नो डाउट बहुत अच्छी कंपनीज, मतलब कुछ एक इंडी गेम निकल रहा है अभी, वो कॉन्ग करके नाम है शायद उसका, मुझे अच्छे से याद नहीं है, ब्लैक वो कॉन्ग नाम है। उसका ट्रेलर देखना तुम लोग, वो बहुत ही तगड़ा गेम है इंडी गेम डेव में, और वो अनरियल इंजन पे बना है। वो ब्लैक वो कॉन्ग करके नाम है, अभी रिलीज नहीं हुआ है वो, बट उसका ट्रेलर देख लेना तुम लोग। वो इंडी गेम डेव है, गेम है। तो इंडी गेम डेवलपमेंट मतलब वही, किसी एक पर्टिकुलर डोमेन को पकड़ो, उसको अच्छे से एक्सप्लोर करो, उसको अच्छे से अप्लाई करो। दूसरा, पेशेंस अच्छे से रखो अपने पास, पेशेंस होना चाहिए। और तीसरा, फंड्स तुम्हें लाने होंगे, क्योंकि अगर तुम बहुत अच्छा बना रहे हो गेम तो तुम्हें ऑब्वियसली यार उस लेवल के एसेट्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। तुम अगर सपोज लेवल डिजाइनिंग में जा रहे हो तो तुम्हें उतना ही अच्छा सॉफ्टवेयर बाय करना पड़ेगा, बट एज एन नाउ वी आर स्टूडेंट्स, सो बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमको स्टूडेंट वर्जन के फॉर्म में फ्री मिल जाते हैं। अब आते हैं कि कोर्सेज मैंने बता दिए कि यूनिटी, अनरियल, रोब्लॉक्स, इन सब की साइट्स पे, नॉट फॉर रोब्लॉक्स बट फॉर यूनिटी एंड अनरियल, उनकी साइट पे तुम्हें कोर्स मिल जाएंगे। और वो कोर्सेज की जो क्वालिटी है वो तुम्हें यूडेमी, यूडेसिटी, कोर्सेरा कहीं नहीं मिलेगी। तो उनकी दोनों की साइट्स पे ही बहुत अच्छे वीडियो लेक्चर्स में कोर्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, तुम उसको बहुत अच्छे से ग्रेस्प करके अप्लाई कर सकते हो। तो इंडी गेम डेव तुम आराम से कर सकते हो, जस्ट बिकॉज बस तुम्हारे पास ये 3 चीजें होनी चाहिए। फोकस होना चाहिए कि तुम डेडलाइंस पे कंप्लीट करो चीजें, एक पर्टिकुलर डोमेन पकड़ के आगे बढ़ो, फंड्स हो, और तीसरा कि पेशेंस होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंस, क्योंकि बहुत जने इंडी में छोड़ देते हैं। और एक तरीका और है कि अगर तुम सीखना चाहते हो, तो अगर तुम्हें पर्टिकुलर, मतलब उनके लिए बता रहा हूँ जिनको थोड़ा बहुत आता है या बेसिक अप्लाई कर चुके हैं, तो तुम गिट में ओपन सोर्स भी होते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स, तुम वहां से भी ले सकते हो। अब ऐसा भी होता है कि जैसे मैंने बोल दिया कि यूनिटी और अनरियल के कोर्सेज हैं जो उनकी साइट्स पे अवेलेबल है। सर गेम इंजन डेवलपमेंट स्कोप है क्या? देख, ऐसा बताता मैं कि जैसे काफी इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं जो यूनिटी और अनरियल मांगते हैं, मतलब स्किल मांगते हैं कि तुमने यूनिटी या अनरियल पे काम कर रखा है। बट जब तुम जाओगे, क्या बोलते हैं, तुमने सपोज किसी एमएनसी के लिए अप्लाई किया है, एंड विद, और तुम अगर उसमें सिलेक्ट हो जाते हो, मतलब काफी अच्छी चीज है वो। तो जो बड़ी बड़ी एमएनसीज होती है ना, उनका खुद का गेम इंजन है, वो अनरियल या यूनिटी इन पे काम नहीं करती हैं। बहुत सारे जो बड़े बड़े एमएनसीज होते हैं उनके खुद के ओन्ड इंजन होते हैं, और वो उसी पर्टिकुलर इंजन पे काम करते हैं। तो डेफिनेटली अगर वो एक पोस्ट निकालते हैं उस इंजन पे काम करने के लिए, तो ऑब्वियसली अगर तुम्हें उस साइड पे इंटरेस्ट है तो स्कोप है। और मैं बता रहा हूँ ना, इंडिया में सबसे ज्यादा, इंडिया में इतना ज्यादा स्कोप है गेम से रिलेटेड हर उस फील्ड का, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत है और गेमिंग स्टूडियोज कम है, स्कोप बहुत ज्यादा है। तो तुम किसी भी पर्टिकुलर डोमेन में जा सकते हो, एटलीस्ट फॉर द गेम डेवलपमेंट। फिर कोर्सेज का मैंने बता दिया, साइट पे होते हैं अच्छे से। कुछ पर्टिकुलर चीज में अगर तुम अटक रहे हो तो यूट्यूब तो बहुत अच्छा सोर्स है, ये गूगल बहुत अच्छा सोर्स है। तुम स्टैक ओवरफ्लो में, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स टाइप जो लोग होते हैं, वो बेसिकली ज्यादातर स्टैक ओवरफ्लो पे जाते हैं कि तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाए, या फिर तुम्हें उस
एरर का पता चल जाए क्यों ऐसा हो रहा है। तो सेम गोज फॉर यूनिटी एंड अनरियल, दे हैव देयर ओन फोरम्स, तुम उस पे जाओ, तुम्हें मोस्टली जो तुम्हारी क्वेरी है वो मिल जाएगी वहाँ पे। ऐसा बहुत ही रेयर है कि तुम्हें वहाँ पे वो जो क्वेरी तुम्हारी है वो ना मिले, तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ऐसा अनरियल और यूनिटी और एज अ बिगनर तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो। किसी को दूसरे डिजाइनर एस्पेक्ट में जाना है, क्रिएटिव एस्पेक्ट में, तो उसके अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, वो मैं प्रियांश के साथ लिस्ट शेयर कर दूंगा, वो तुम्हें फॉरवर्ड कर देगा अगर तुम उस पर्टिकुलर चीज में जाना चाहते हो तो। फिर यूट्यूब है ऑब्वियसली। अब आती है कि किसी को वीडियो लेक्चर से पढ़ना पसंद नहीं है, किसी को मतलब ऐसे थियोरिटिकली भी स्क्रीन के थ्रू पढ़ना पसंद नहीं है, तो बुक्स हैं। और बुक्स में मैं बता सकता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके एक्सप्लेन करती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम कोई बुक पढ़ी और तुम बोर मार गई। गेम डेवलपमेंट की बुक्स बिल्कुल भी वैसी नहीं होती है। तुम अगर उसको पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि यार एक पेज और पढ़ लूँ, एक पेज और पढ़ लूँ, ऐसा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेवलपमेंट किस फील्ड में आती है, यार इसका आइडिया नहीं है मुझे। आई डोंट हैव आइडिया फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। तो हाँ, बुक्स जो होती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि तुम लिटरली ये बोलोगे कि यार एक पेज और पढ़ लेता हूँ, एक पेज और पढ़ लेता हूँ। गेम डेवलपमेंट की बुक्स ऐसी होती हैं, और गेम डेवलपमेंट की बुक्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होती हैं। कुछ कुछ 3,500 4,000 तक चली जाती हैं एक ही बुक, जो ज़्यादा पढ़ने की भी नहीं होती, बट उसमें जो मैटर होता है उसके अंदर का वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो तुम बुक्स के थ्रू भी पढ़ सकते हो, और काफ़ी कुछ सिखा देती हैं बुक। जैसे अगर तुम्हें एक अच्छा गेम डिज़ाइनर बनना है तो उसके लिए एक बुक है, थ्योरी ऑफ फन फॉर गेम डिज़ाइन। ये बुक बहुत अच्छी है। मतलब तुम जनरल बुक बता रहा हूँ मैं, ये थियरी ऑफ फन फॉर गेम डिजाइन, जो तुम्हें मतलब हर जगह काम आएगी। तुम चाहे कुछ भी चीज डेवलप कर रहे हो, कुछ भी चीज, बहुत अच्छी बुक है ये। फिर लेवल डिजाइनिंग के लिए भी होती है, गेम प्ले प्रोग्रामर्स के लिए भी बुक होती है। तो बुक भी एक सोर्स है समझने का। तो ये उनके लिए, मतलब जो वीडियो लेक्चर से उतना पसंद नहीं करते हैं या फिर स्क्रीन थियोरेटिकल वे में पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, तो बुक्स काफी अच्छी सोर्स है उनके लिए। फिर आते हैं अपन, इंजन बता दिए मैंने तुम लोगों को। अब तुम में से अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो मुझसे पूछ सकता है। फिर उसके बाद या तो मैं ये बताऊंगा कि प्लेटफॉर्म्स क्या है जिसके थ्रू तुम अप्लाई कर सकते हो, या तुम्हें क्या करना चाहिए। अच्छा, एक चीज और, जब भी कोई गेम पे काम करना चालू होता है किसी भी कंपनी में या इंडी गेम में या कहीं भी फ्रीलांसिंग कर रहे हो तुम, चाहे स्टार्टअप में हो, चाहे तुम एमएनसी में हो, चाहे तुम इंडी गेम डेव कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो एक टर्म होता है गेम डिजाइन डॉक्यूमेंट, जीडीडी बोलते हैं उसको शॉर्ट में। वो गेम डिजाइन डॉक्यूमेंट बेसिकली ऐसा होता है कि उसके अंदर तुम स्टार्ट से लेकर एंड तक ये मेंशन करते हो कि तुम्हारी टारगेट ऑडियंस क्या रहेगी, तुम किस जॉनरा का गेम बना रहे हो, तुम्हारा कोर लूप क्या होगा गेम का, तुम क्या क्या मैकेनिक्स डालने वाले हो, बेसिकली एवरीथिंग विच आर गोइंग टू मेक एज अ प्रोडक्ट, वो सब कुछ उस जीडीडी में होना चाहिए। और ये गेम डिजाइन डॉक्यूमेंट के ही बेसिस पे पूरी जो, मतलब एमएनसी में तो 200 से 300 या 300 से भी ज्यादा लोग एक ही गेम पे काम करते हैं। तो वो कोलैबोरेट इसी तरीके से कर पाते हैं कि उनको पास एक कॉमन जीडीडी होता है, कि वो उसी जीडीडी को देख के पर्टिकुलर एक मैकेनिक या फिर क्रिएटिविटी इंप्लीमेंट करते हैं। क्योंकि अगर उससे अलग जाएंगे तो गेम बिगड़ जाएगा। इसलिए कुछ भी चालू करने से पहले एक जीडीडी तैयार होता है। किसी भी गेम जब डेवलप होता है उसके पहले पहले जीडीडी ही तैयार होता है। ठीक है, फिर ये स्कोप का मैंने तब बता दिया कि बहुत स्कोप है, चाहे तुम किसी भी डोमेन में चले जाओ, गेम डेवलपमेंट के बहुत स्कोप है, और बहुत ज्यादा क्रिएटिवनेस आती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये कि तुम अगर किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो बहुत अच्छी कंपनी है, तुम वहाँ चले गए, तो उनके बाद उनके पर्क्स कुछ ऐसे भी होते हैं कि उनके खुद के जो ब्रांड के गेम्स हैं वो तुम्हें फ्री में मिलते हैं। कितने, क्योंकि बहुत सारे गेम्स होते हैं, लोग तो पायरेटेड डाउनलोड कर लेते हैं जिसमें कुछ कुछ फीचर्स मिसिंग होते हैं, बट वंस यू गेट हायर्ड इन सम गुड कंपनी तो दे प्रोवाइड यू विद द ब्रांड प्रोडक्ट। बहुत अच्छा होता है वो भी एक चीज। तो मतलब मेरी साइड से इतना ही है अभी के लिए, क्योंकि इससे ज्यादा तो मतलब अगर मैं बताऊंगा तो मैं तभी बता सकता हूँ, मतलब मेरे को कोई कोई क्वेरी करे तो, कोई कुछ पूछना चाहता है तो। प्लेटफॉर्म्स, हाँ, एक प्लेटफॉर्म है कि तुम किस पे अप्लाई करो। तो अगर तुम किसी बहुत कोई भी कंपनी ले लो, हर कंपनी का अपना एक वेबसाइट होगा, ऑब्वियसली होगा, तो उसमें करियर्स ऑप्शन होता है। करियर्स ऑप्शन में जाओ, तुम्हें वहाँ पे जॉब ओपनिंग्स मिलेंगी, तुम वहाँ पे एक प्रॉपर सीवी के साथ अप्लाई करो, कवर लेटर के साथ अप्लाई करो। और हाँ, एक चीज़ और, गेम प्ले प्रोग्रामर के साथ ऐसा होता है कि उनकी टेक्निकल स्किल्स नापी जाती है, और उसको नापने के लिए वो दे जनरली सेंड यू अ टेक्निकल टेस्ट। वो तुमने क्लियर कर लिया तो सेकंड राउंड, थर्ड राउंड जो भी होता है वो इंटरव्यू होता है एचआर के साथ या फिर जिसके भी साथ होगा तुम्हारा नेक्स्ट राउंड। तो फर्स्ट थिंग दे मेजर इज थ्रू टेक्निकल टेस्ट फॉर गेम प्ले प्रोग्रामर। अब आती है अगर बात दूसरे की, जैसे लेवल डिजाइनर्स की या फिर कंसेप्ट आर्टिस्ट की या फिर गेम एनवायरनमेंट आर्टिस्ट की, तो उनके लिए वो मांगते हैं पोर्टफोलियो,
दे डोंट आस्क यू फॉर पर्टिकुलर टेक्निकल स्किल, उसके लिए तुम्हें पोर्टफोलियो अच्छा होना चाहिए। मतलब अगर तुम अप्लाई कर रहे हो लेवल डिजाइनिंग की पोस्ट के लिए या इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, क्रिएटिव पोस्ट के लिए, तो उससे पहले अपना एक पर्टिकुलर बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना लो जिसके अंदर तुमने अपना काम शोकेस कर रखा हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। अगर तुमने सपोज अप्लाई कर दिया बट यू डोंट हैव एनी पोर्टफोलियो, तो तुम्हें रिस्पॉन्स नहीं आएगा, डेफिनेटली यू डेफिनेटली गेट अ रिजेक्शन। और मैंने पर्सनली बहुत रिजेक्शन देखे हैं इस मेरी इंटर्नशिप के पहले, बहुत सारे, मेरे को याद भी नहीं है इतना काउंट है मेरी रिजेक्शंस का। तो कंपटीशन इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा है इसमें, तो पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बनाओ। एक पर्टिकुलर टाइम जब तुम्हें लगता है कि हाँ यार अब कर लिया है, तब तुम अच्छे से अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। और हर कंपनी की साइट पे, चाहे वो एमएनसी हो चाहे स्टार्टअप हो, उनकी साइट पे करियर्स पेज होता है या लिंक्डइन पेज है, उस पे जाओ, में वो जॉब ओपनिंग्स दिखाएंगे ऑब्वियसली, जो ओपन रहेंगी उनकी जॉब जॉब ओपनिंग्स जो भी, उस पर अप्लाई करो, तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा। और दूसरे प्लेटफॉर्म्स की बात करूँ तो एक तो ये कंपनी की साइट्स हो गई, दूसरा लिंक्डइन है। लिंक्डइन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, पूरे वर्ल्ड को जोड़ा हुआ है, वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें तुम्हें हर टाइप की मतलब कंपनी का जॉब पोस्टिंग मिल जाएगा इफ दे हैव सम। एंड उसके बाद अगर छोटे साइट्स, अकॉर्डिंग टू मी दूसरी साइट्स की बात करूँ जहाँ तुम अप्लाई कर सकते हो, तो एंजल लिस्ट है। इंटर्नशाला मैं उतना सजेस्ट नहीं करता, बिकॉज इंटर्नशाला पे बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं। मतलब दूसरी जगह भी फ्रॉड्स होते हैं नो डाउट, बट इंटर्नशाला इज समथिंग विच इज फेमस फॉर फ्रॉड्स अकॉर्डिंग टू मी। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ तुम अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ भी क्वेरी हो तुम्हारी साइड से तो पूछो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माइक म्यूट ऑफ कर लो, बात कर लो, कुछ भी, एनीथिंग। मैं अभी गेम प्ले प्रोग्रामर में हूँ मैं। और मेरा जो मतलब मैं बेसिकली मेरा बताऊं तो मुझे कोडिंग में जाना नहीं था, बट समहाउ पढ़ रखा था, तो उसी के बेसिस पे मैं गेम प्ले प्रोग्रामर के लिए गया। और अभी मैं साइड में मेरी जो स्किल मैं चाहता हूँ वो लेवल डिजाइनर की है, तो मैं लेवल डिजाइनिंग के लिए अलग से सीख रहा हूँ। बाकी मेरा जो डोमेन है कंपनी में वो एज इन गेम प्ले प्रोग्रामर। ना ना ना, कुछ भी स्विच मत करो, जो तुम कर रहे हो ना उसको पूरा अच्छे से करो पहले, बिकॉज इट वोंट गो इन टू वेस्ट। पहले उसको अच्छे से करो, उसके बाद इफ यू वांट टू स्विच ऑन टू समथिंग एल्स तब तुम कर सकते हो। मैं स्विच करने के लिए कभी नहीं बोलूंगा, जो तुम कर रहे हो पहले उसको अच्छे से करो, क्योंकि वो जो नॉलेज है वो कहीं तुम्हारी वेस्ट नहीं जाएगी। बस ऐसा है कि दो चीजें कभी एक साथ करने की ट्राई मत करना, जब तक तुम पहली ही चीज पे या फिर जो दो चीजें तुम कर रहे हो उसमें से किसी एक चीज पे भी अगर तुम्हारा पकड़ नहीं है, तो इट वोंट बी फ्रूटफुल फॉर यू। तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि या ये करूँ, तुमसे टाइम मैनेज नहीं होगा, तुम एक पॉइंट आएगा दोनों चीजें छोड़ दोगे। तो इसलिए एक बार में एक चीज करो, फिर डेफिनेटली अगर वो चीज तुम्हें लगता है कि हाँ तुम ग्रेस्प कर चुके हो, फिर अगली चीज पे स्विच करो। तो ठीक है, मतलब मेरी तरफ से तो इतना ही है। बाकी अगर कुछ हो तो तुम प्रियांश को बोल सकते हो या मुझे कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। तो मनन, इसके बाद क्या है? ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट फील्ड AIML रहेगी, और AIML में तान्या स्टार्ट करेगी सबसे पहले। सो तान्या टेक ओवर कर ले। Hello everyone. So I will speak about artificial intelligence, machine learning and सबसे ज़्यादा तो deep learning के बारे में ही सुना होगा. So take a step back and क्या कोई share करना चाहेगा? What do you exactly mean by intelligence? Anyone? Try to speak it in context with artificial intelligence, whatever you know. I guess no one. So intelligence, it is simply defined as the ability to process information in such a way कि हम उसे ऐसे प्रोसेस करें कि हम फ्यूचर में उससे रिलेटेड कोई डिसीजन ले पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आपने उनकी बातें सुनी, वो एक इंफॉर्मेशन है, आपने उनकी बातें समझी यानी उसे प्रोसेस किया, और कैसे बात करना है इस रेफरेंस में उनसे बात किया। दिस इज ऑल्सो इंटेलिजेंस. So in artificial intelligence, we just have to process data. एक मॉडल देना है, उसमें उसे डेटा से ट्रेन करना है, and then we look out after it outcomes. So this is artificial intelligence and it is very vast, very very vast.
And machine learning is just a small subset of artificial intelligence. What is machine learning explicitly? ये एक ऐसा सबसेट है जिसमें हम लोग एक्सप्लिसिटली ट्रेन नहीं करते मॉडल को फॉर अ डिफरेंट सिचुएशन. फॉर एग्जांपल उसे सिर्फ इस तरह से ट्रेन नहीं कर रहे हैं कि आप क्लासिफिकेशन करो. जैसे कि हमने आपको एक बहुत बड़ा सा डेटा सेट दे दिया विच कंटेन्स बोथ इमेजेस ऑफ डॉग्स एंड कैट्स. तो हमने एक बार उसे ट्रेन कर दिया कि हाँ डॉग्स एंड कैट्स को क्लासीफाई करो, और फिर उसे दूसरे एनिमल्स के लिए फिर से ट्रेन कर रहे हैं. नहीं, ऐसा नहीं. हमने उसे एक बार क्लासीफाई करना सिखा दिया एंड नाउ इट कैन क्लासीफाई एनीथिंग. दो डिफरेंट चीज़ें क्लासीफाई कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल इट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अल्फाबेट्स एंड न्यूमेरिकल्स. इट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन टू ह्यूमंस. सो मशीन लर्निंग इज दैट कि हमने उसे एक टॉपिक पे ट्रेन कर दिया एंड वी कैन यूज इट इन डिफरेंट सिचुएशंस. लाइक क्लासिफिकेशन के लिए बनाया है तो उसे क्लासीफाई करने के लिए ही यूज करेंगे, बट डिफरेंट चीज़ों के लिए भी यूज कर सकते हैं. सो मशीन लर्निंग इज नॉट अ डिफरेंट फील्ड फ्रॉम AI, वो उसका एक छोटा सा पार्ट है. एंड डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का भी एक छोटा सा पार्ट है जिसमें हम न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे न्यूरल नेटवर्क्स हमारे ब्रेन में है, इंफॉर्मेशन पहले रिसेप्टर्स प्रोसेस करते हैं, फिर उसे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, ब्रेन उसे प्रोसेस करता है. उसी तरह से न्यूरल नेटवर्क्स में भी हम बहुत सारे लेयर्स बनाते हैं. पहला जो इनपुट लेता है, दूसरे लेयर में हम उसे प्रोसेस करते हैं, और फिर काफ़ी सारे लेयर्स होते हैं ताकि इंफॉर्मेशन अच्छे से प्रोसेस हो पाए, एंड देन देयर इज एन आउटपुट लेयर. So this is deep learning, and deep learning is the most, I guess, most promising aspect of artificial intelligence. आप अपने आसपास जो भी artificial intelligence का पार्ट देख रहे होंगे, I can claim that it's on deep learning. For example, आपका मोबाइल फोन जो कि फिंगरप्रिंट सेंसर से खुलता है, even that's deep learning. Like have you ever noticed कि जब आप अपना फिंगरप्रिंट रजिस्टर करते हैं तो वो आपसे काफ़ी बार रजिस्टर करने को बोलता है, कभी थोड़ा डिफरेंट एंगल पे. इट्स टेकिंग नथिंग बट द डेटा. वो आपके फिंगरप्रिंट का डेटा ले रहा है और उसे एक पैटर्न बना रहा है, और फिर उसी पैटर्न के बेसिस पे जब आप दोबारा अनलॉक करने आओगे तो वो आपके फिंगरप्रिंट को पहचानेगा और फिर खोलेगा. इफ़ यू वांट टू ट्राई, यू कैन ट्राई कि आप 2-3 लोग मिलकर फिंगरप्रिंट रजिस्टर करो एक बार में, वो तीनों के ही फिंगरप्रिंट्स पे खुल जाएगा, बिकॉज उसने पैटर्न वैसा ही बना लिया. इट्स नॉट इंटेलिजेंट इनफ कि उसे पता चले कि ये दूसरे इंसान का फिंगर है. नो. सो दैट्स डीप लर्निंग. डीप लर्निंग इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग एस्पेक्ट ऑफ मशीन लर्निंग, जिसमें न्यूरल नेटवर्क्स एक पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करते हैं, और काफ़ी स्मार्टली और इंटेलिजेंट वे में वो पैटर्न्स फाइंड होते हैं. काफ़ी सारे अच्छे एल्गोरिथम्स बने हैं, ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स एंड एवरीथिंग एल्स ऑन डीप लर्निंग. काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं डीप लर्निंग पे, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स. सो इट्स ऑल अबाउट मॉडल ट्रेनिंग. जैसे आप एक कार लो और फिर आपको उसी रास्ते पे उसे कम से कम 10 बार आगे पीछे करना होता है. यू हैव टू ड्राइव द सेम कार ऑन द सेम वे मेनी टाइम्स, ताकि वो उस पैटर्न को याद रख सके कि उसे कब कैसे टर्न लेना है. ऐसा नहीं और फिर आपने एक बार उसे ड्राइव करना सिखा दिया, देन यू कैन ट्राई इट ऑन डिफरेंट रूट्स. सो बिफोर स्टार्टिंग AI, ML और डीप लर्निंग, आई सजेस्ट कि आप स्टार्ट करो एक लैंग्वेज से जो कि इंटीग्रेबल हो, इजी टू अंडरस्टैंड. दैट्स पाइथन और R. बहुत कंफ्यूजन होता है ना लोगों को कि यू शुड स्टार्ट विथ पाइथन और यू शुड स्टार्ट विथ R. आई से कि स्टार्ट विथ पाइथन बिकॉज R इज पाइथन हर चीज़ में अच्छा है. R comes into play when you have to do statistics, mathematics calculation. काफ़ी सारी libraries हैं R पे, but you won't do it in beginning, so you can start with Python. Python has a load of libraries for machine learning, but हर चीज़ के लिए library है. You won't have to write a lot of lines of codes because you can import a lot of libraries that's already made on it. And after that you can, और एक बार आपने लैंग्वेज सीख ली, देन आई थिंक यू शुड प्रोसीड फॉर डेटा साइंस. नॉट टोटली बट एटलीस्ट की डेटा गैदर कैसे करना है, हाउ यू कैन मेक अ टेबल फॉर प्रोसेसिंग डेटा, बिकॉज एज आई सेड कि आप डेटा ही प्रोसेस करते हो ML और AI में. यू डोंट डू एनीथिंग डिफरेंट. यू हैव टू प्रोसेस डेटा एंड टीच योर मॉडल हाउ वाइजली इट कैन यूज डेटा टू टेक डिसीजंस. Right? So data processing is the most important aspect of ML and AI. Don't ever try to jump it कि हम data science नहीं सीखेंगे, we'll just go to ML. You have to go back to data science because you can't do anything without it. And for data science, not only data science, you have to learn many frameworks like Pandas, Scikit-learn. So these are very useful things. So start with these things. And then you can go for AI ML courses, because AI ML courses में आपको बस algorithms बताए जाते हैं कि
कैसे कैसे किस एल्गोरिथम का यूज करके आप मॉडल ट्रेन कर सकते हैं. So if you want to know step by step how to start, you can go to Kaggle. It has a section named micro courses. You can go there और आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे steps पे start करना है, सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है. उन्होंने बहुत अच्छे से explain कर रखा है और they even give you an opportunity to write codes though. So it's very exciting that you are learning and you are using your practical knowledge there also. So you can go there, and after that you can proceed to Coursera for AI/ML courses and deep learning. An important suggestion that go for the new ones. Don't go for the before ones where they used to teach on Octave and all. Go for the courses which use Python as their language or any modern language. And then there are various number of sites which you can prefer. I'll suggest Machine Hack. Once you get used to all these things, then go for Machine Hack. वो आपको algorithms and how you can use them in real problems वो आपको simultaneously बताता है. So Machine Hack, just note it down. It's very useful. Even if you just want to see that how you actually train a model, then you can go for Machine Hack. It's like if you shall I show you how it is now? Yes, ma'am. Okay, I'll show you. Machine Hack is very similar to what you do with that CP thing. Like here you will find a problem. This is the basic site of Machine Hack. It has various algorithms. For example, the most basic thing you can build is linear regression. Then you can go for multiple linear regression and decision tree, everything. It has all 33 algorithms. I mean, it's amazing, really. And then you can make very good projects like sentiment analysis with neural networks and all. So I'll suggest that you start with this one, the one that has maximum participants, linear regression one, and then you can come here. They'll explain you a sample problem. Like in this one, they have given you a problem that you have to make this, and then step by step they have a notebook. It's totally solved actually. So you can see that first step they are showing that you have to process data, you have to import libraries, importing data sets step by step, and they have solved it. So it's really good if you want to see what are the steps. For example, you can only process data when you have some basic knowledge of data science, right? And then the algorithm parts. So it's really good. And they have a lot of theory also. And so I'll suggest that once you have a basic idea, if you have learned, you have done courses about all this, then go for Machine Hack. If you are not able to find a good site like Kaggle, it doesn't have so much written information, right? You can start with it. So you can start with Machine Hack if you have any problem with starting things. I'll advise Machine Hack for those who have a little bit of idea, and for those who don't, first start with a good language and then try different data frames and then go for microcourses on Kaggle, Coursera, and then you can go for Machine Hack or Kaggle competitions. So yes, you can try Kaggle for immediate learning. Really, that's a good point. How will you make AI if you don't know how to process data? That's what I'm saying, right? अगर डेटा प्रोसेस करने नहीं आ रहा है तो आप अपने मॉडल को कैसे ट्रेन करोगे? आपको अपने मॉडल को क्या सिखाना है कि हाउ वाइसली यू हैव टू प्रोसेस डेटा. So yes, you have to learn data science first if you really want to make some sensible projects which you can write in your CV. Start with a good Ritesh, you can start with a good language like Python. Then as I said, go for micro courses on Kaggle and then Coursera, and then you go. So this is from my side, and if anyone wants to continue, Bhaumik, are you there? I think he's I not guess. there. Okay, Piyush, take over. Thank you, Tanya. And one more thing, if you want to know more about projects, you can DM me, as I have worked in a few startups for some projects, and I will continue projects for later meetings. Okay, thank you. तान्या इनको To you, डिस्कॉर्ड Piyush. एक्चुअली ऐड कर देंगे, वहां शेयर कर देना जो भी रहेगा. Okay. To you, Piyush, continue.
थैंक यू तन्या। गाइस अब ऐसा है कि एआई और एमएल ना बहुत फैसिनेटिंग चीज होती है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें ना डाउट्स भी बहुत सारे रहते हैं। लाइक क्या, जैसे अभी पूछा था यहाँ पे ने कि एआई के लिए डाटा साइंस करना पड़ेगा क्या, या फिर जैसे कुछ लोगों को अपना मशीन लर्निंग फैसिनेट करती है, कुछ लोगों को डीप लर्निंग करती है, कुछ लोग को पर्टिकुलरली सेंटिमेंट एनालिसिस कर जाता है। तो इसमें ना क्या है कि कोई एक डोमेन को रिस्ट्रिक्ट मत करो अपने आप को ना थोड़ा ओपन रखो कि यार मल्टीपल डोमेन्स के लिए हम वर्क करेंगे। लाइक अब अगर एआई का प्रोजेक्ट बनाना है तो उसमें डाटा रिक्वायरमेंट तो आएगी, तो उस डाटा को क्लीन भी करना पड़ेगा, उस डाटा को अरेंज भी करना पड़ेगा कि वो यूजफुल डाटा बन सके। तो ना अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करने का किसी एक चीज के लिए। अब क्या है कि स्टार्ट सबसे पहले पाइथन से करो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि क्या है पाइथन से करोगे तो उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल है। तो एआई के प्रोजेक्ट्स जो बड़े बड़े होंगे वो सब यूज कर सकते हो आप। ओपन सीवी वगैरह यूज कर सकते हो। जैसे अपना अभी सुना होगा, बहुत ज्यादा चल रहा है ये अटेंडेंस का, सुना होगा कि कैमरे से अटेंडेंस लग जाती है आपकी। ये एआई का पार्ट है, इसको आप इजीली कर सकते हो। लेकिन क्या है कि वही ना, डाटा क्लीन नहीं कर पाऊंगा तो कुछ फायदा नहीं है उस चीज का। तो पाइथन सबसे बेस्ट होता है स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि उसमें लाइब्रेरीज काफी सारी हैं। और दूसरा क्या है कि ना स्टैट्स भी रिक्वायर्ड होगा आपको, ऐसे नहीं कि आप सीधा पाइथन से करो सीधा टेक्निकल वर्क हो जाए, मैथ्स रिक्वायर्ड होगी यार। अगर एआई है तो मैथ्स तो आएगी साथ में। अब क्या है तो ना स्टैट्स का एक कोर्स बहुत अच्छा है, खान एकेडमी करके। तो मैं पर्सनली एडवाइस करूंगा कि आप वो कोर्स भी जरूर करें, स्टैटिस्टिक्स का। अब यह है कि स्टार्टिंग में ना स्टैटिस्टिक्स करते हैं तो काफी बोर हो जाते हैं, क्योंकि एक तो पीसीएम वाले लोग हैं तो स्टैट्स में वैसे भी ज्यादा मजा आता नहीं। तो क्या है कि पहले पाइथन से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर उस पर जाओ तो वो ज्यादा बेटर रहता है। और एक ना काफी लोगों को डाउट रहता है कि यार मैं सीपी नहीं करता तो मेरे लिए एआई है कि नहीं है। तो ऐसा है कि कोडिंग रिक्वायर्ड है, अच्छी कोडिंग रिक्वायर्ड है। और ये जो नहीं है कि आप सीपी करो, मैं पर्सनली भी उतनी ज्यादा सीपी नहीं करता। मैं ये नहीं कहूंगा सीपी मत करो, सीपी करोगे तो बेनिफिट डेफिनेटली होगा, लॉजिक ज्यादा आसानी से ढूंढ पाओगे, ज्यादा अच्छे लॉजिक्स बना पाओगे। पर एट द एंड सीपी तो करनी पड़ेगी भाई, सीपी के बिना नहीं बन पाएगा काम। तो सीपी एट द एंड रखनी पड़ेगी। पर हाँ ये नहीं है कि स्टार्ट करने के लिए सीपी जरूरी है, अगर सीपी नहीं करी तो सीधा इससे स्टार्ट कर सकते हो। अभी जैसे ना एप्लीकेशन के लिए मैं बताऊँ तो आप लोगों ने भी जब लॉकडाउन स्टार्ट में लगा था तो काफी लोगों ने देखा होगा वो बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा था, इतने दिन में इतने केस हो जाएंगे, इंडिया यहाँ तक पहुंच जाएगा, इस रैंक पे आ जाएगा। वो सब चीज हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं, वो सब में एआई लगा हुआ है कि भाई हमने पैटर्न रिकॉग्नाइज करे हैं, हम उससे बता रहे हैं कि भाई हाँ किस तरह डाटा ड्रिव हो रहा होगा, आगे किस तरह चल रहा होंगी चीजें। तो वही सब चीज रहती है इसमें कि आपको ना स्टार्ट पहले करना पड़ेगा। मेन है कि स्टार्ट करना जरूरी है, इसमें टाइम लगेगा। ऐसे नहीं है कि स्टार्ट करते ही कि भाई हाँ जिस चीज ने मुझे फैसिनेट किया था वो प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे, नहीं, उसमें टाइम लगेगा। आउटपुट दिखने में थोड़ा टाइम लगता है इन चीज में, ऐसे नहीं है कि स्टार्टिंग से आउटपुट दिखने लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा उन चीजों में। पर हाँ अगर कंटिन्यूसली मोटिवेट रहोगे ना तो आगे बहुत बेनिफिट होगा। अब जैसे सेकेंड ईयर में आओगे तो प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, या एसआईएच का नाम सुना है किसी ने? सुना है किसी ने? हाँ, तो जैसे एसआईएच स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, ये क्या नेशनल हैकाथॉन होता है, ये गवर्नमेंट हैकाथॉन है। उसमें अपने को ना दो तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, वो अलग अलग एक तरह से एक्चुअल प्रॉब्लम्स देते हैं किसी कंपनी के दिए हुए प्रॉब्लम्स की, भाई ये उनकी प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना है। तो उस सब के लिए आपको मोस्टली अगर सॉफ्टवेयर है तो 90% केस में एआई वगैरह यूज आएंगे। 90% केस में एआई लगाना ही पड़ेगा, तभी आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। बस इफिशिएंट सॉल्यूशन भी तभी बन पाता है। तो अब जैसे सेकंड ईयर में आओगे, आगे आओगे तो कॉलेज भी प्रोजेक्ट्स देगा, तो उसमें भी मोस्टली एआई के प्रोजेक्ट्स को थोड़ा अपर हैंड रहता है। तो ये चीज है तो। और यार एक लोग को लगता है कि मास्टर्स के बिना एआई में कुछ बेनिफिट नहीं है, अगर मास्टर्स डिग्री नहीं है तो भाई देखो ऐसा नहीं है। मास्टर्स डिग्री से बेनिफिट होंगे, पर ऐसा नहीं है कि अगर मास्टर्स डिग्री नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, नहीं। है ना, चीजें तो वही है। मास्टर्स को ऐसे थोड़ी उन्हें कुछ अलग बताएंगे, उनको थोड़ा और ज्यादा एडवांस में बताते हैं, एल्गोरिथम्स उन्हें क्रिएट करना बताते हैं। पर आप वो चीज अपने आप भी सीख सकते हो, उसमें कुछ इतना ज्यादा वो नहीं रहता। और एक चीज इसमें रहती है कि हाँ कंटिन्यूस अपडेट रहता है यार इसमें। लाइक अगर आज कोई एल्गोरिथम सीखी है तो पता चलेगा 2 साल बाद वो पुरानी हो गई, कोई नई एल्गोरिथम आ गई है जो ज्यादा अच्छा वर्क कर रही है। तो एक रिसर्च पेपर्स पढ़ने सीखने पड़ते हैं कि, और उनकी हैबिट बनानी पड़ती है कि कुछ भी नया आया है तो उससे अप टू डेट किस तरह रहना है ना। मतलब मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा यही में फैसिनेटिंग बात ये लगती है कि कंटिन्यूसली चेंजिंग है इसमें ना, ये वाली चीज है। और यार सोर्सेज के लिए एक साइट है डाटा कैंप, उस पर आपको बहुत ही सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, वो भी फ्री में अवेलेबल होता है। यूट्यूब पे सिंपली सर्च करोगे ना कि डाटा कैंप फ्री में किस तरह मिले, हाउ टू गेट डाटा कैंप कोर्सेज फॉर फ्री, तो आराम से मिल जाएगा। काफी सारे लिंक्स डाल रखे हैं उन्होंने, तो उनसे कोई भी कोर्स कर सकते हो फ्री में, उसके भी कोर्सेज काफी अच्छे रहते हैं। तो ये चीजें बाकी है। और आपको मतलब काफी सारे डाउट्स जो होंगे वो फिर हम आगे लेते हैं, क्योंकि आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।
सो थैंक्स पीयूष एंड तान्या। अब नेक्स्ट अब एथिकल हैकिंग के बारे में बात करेंगे। अश्विन शेयर करेगा सारी की सारी जो भी डिटेल्स रहेंगी। अश्विन 2 साल से एथिकल हैकिंग में काम कर रहा है, CTF में भी बहुत अच्छा है, और अब अश्विन सारी चीजें तुम्हें बताएगा। अश्विन। हाँ, ओके, थैंक यू मनन। गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम अश्विन कुमार फ्रॉम बीटेक सेकेंड ईयर, और मैं अब आपसे बात करने वाला साइबर सिक्योरिटी मींस एथिकल हैकिंग के बारे में। तो अभी जैसे स्टार्टिंग में मनन और मनी ने डेवलपमेंट के बारे में बताया होगा कि उसमें फील्ड्स बताए थे कि HTML, CSS एंड फ्रंट एंड बैक एंड के बारे में बताया था। अब बारी आती है कि अगर मतलब आपने ये सब तो रेडी करके रखे हैं, लेकिन क्या जो वेबसाइट बनी है या एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना है वो सिक्योर है कि नहीं है, उसके बारे में भी आपको देखना होता है। तो उसके लिए एथिकल हैकिंग फील्ड है। मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। स्क्रीन विजिबल है मेरी? हाँ अश्विन। यस सर। ओके, सो साइबर सिक्योरिटी के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी बेसिकली होता क्या है। उसमें आप सिस्टम और नेटवर्क को डिजिटल अटैक से प्रोटेक्ट करते हैं। जो अटैक इंटरनल भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है। जैसे एक्टिव डायरेक्टरी जो पार्ट आता है वो इंटरनल सिक्योरिटी रिस्क के अंदर आता है। अभी जो स्क्रीन पे चल रहा है वो एक CTF है, नॉर्मल सा CTF बेसिकली आपका रियल वर्ल्ड सिनेरियो पे फोकस करता है पूरा। बेसिकली ये मशीन्स होती हैं, मतलब वर्चुअल मशीन्स होती हैं जिसपे आप प्रैक्टिस करते हैं कि हाउ टू हैक। तो लेकिन ये बिल्कुल सेम टू सेम रियल वर्ल्ड मशीन्स के कंपैरिजन में भी इक्वल होती है। सो एक्टिव डायरेक्टरी तो आपका इंटरनल में आता है, वाइल डीडोस, फिशिंग और रैंसमवेयर अटैक्स आपने शायद नाम सुना ही होगा इन सब का। तो ये सब एक्सटर्नल साइबर रिस्क के अंडर आता है। अब आपकी जॉब क्या है यहाँ पे? अब आपको बेसिकली आप डेवलपमेंट में नहीं जा रहे हैं, आपको बनना है पेनिट्रेशन टेस्टर या सिक्योरिटी एनालिस्ट। तो ये फील्ड इसके लिए है। अब जैसे मैं बात करता हूँ कि बग बाउंटी का नाम सुना होगा किसी ने? रियल वर्ल्ड। हाँ, तो बग बाउंटी बेसिकली क्या है? थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं जो कंपनीज और रिसर्चर्स को आपस में कनेक्ट करती हैं। अब कंपनीज यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, और रिसर्चर्स यानी आप लोग, मतलब कि आप लोग और पेनिट्रेशन टेस्टर। सो मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन ने एक नया बीटा प्रोडक्ट अपना रिलीज किया है, और वो बीटा प्रोडक्ट कोई वेबसाइट है या ऐप है। आपका जॉब ये रहेगा कि वहां पे जाके उन प्रोडक्ट्स में बग्स ढूंढना है, मतलब उसको देखना है कि उसमें एक्सप्लॉइट क्या कर सकते हैं आप, क्या मतलब क्रिटिकल बग्स फाउंड हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो अगर आपको ये बग्स मिलते हैं तो आप इसको रिपोर्ट करेंगे। अब रिपोर्ट करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा इसी से। तो यही है बग बाउंटी। बग मीन्स बग एंड बाउंटी मीन्स मनी। तो यहाँ पे ओपन सोर्स भी प्रोग्राम्स होते हैं बग बाउंटी के, लेकिन उसमें आपको बाउंटी नहीं मिलती, उसमें आपको रेप्यूटेशन मिलता है, या कोई आपकी T-शर्ट है, मतलब ये सब देते हैं वो लोग, और नाम आपका हॉल ऑफ फेम में डाल देंगे। तो ये सब रहता है, पर वो भी बिगिनर लेवल के लिए बहुत सही है बग बाउंटी भी। सो बात करते हैं CTF की। अभी जो स्क्रीन पे चल रहा है वो CTF है एक। तो मैं थोड़ा फॉरवर्ड कर करके दिखा देता हूँ। अभी इस CTF में बेसिकली अभी एक मशीन दी है मुझे हैक द बॉक्स से। हैक द बॉक्स से ये वर्कर मशीन थी। अब CTF में आपको समझाता हूँ होता क्या है। CTF आपका एक रियल वर्ल्ड जैसी मशीन्स होती हैं, लेकिन उसको वर्चुअल वर्ल्ड में रखा जाता है। तो हर जो मशीन होती है वो एक IP एड्रेस से कनेक्ट होती है, और आपको सिर्फ वो IP एड्रेस दिया रहता है। जैसे कि ये दिख रहा होगा, ये IP एड्रेस दिया रहता है, और आपका जॉब यही रहता है कि इस IP एड्रेस से आप मशीन के अंदर इन हो, मतलब उसको हैक करें। तो जब मशीन के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर आपको एक फ्लैग रिट्रीव करना होता है। वो flag.txt, मतलब फ्लैग कुछ नहीं, बस एक वो फाइल होती है, वो हैश होता है, और वही हैश आपको सबमिट करना होता है इसमें। तो
सबमिट करना होता है इसमें, तो यही है आगे। मैं शो कर देता हूँ जल्दी जल्दी कि नॉर्मली CTF दिखता कैसा है। तो ये एक CTF है, ये एज्यूर डेवऑप्स शायद सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट का होता है, जैसे GitLab होता है मतलब आपका प्रोजेक्ट्स पे वर्क करने के लिए, वैसे एज्यूर डेवऑप्स विंडोज के लिए होता है। तो इसमें मतलब नॉर्मल CTF है, आप जाएंगे इसमें के अंदर, मान लीजिए लॉगिन, जैसे कोई डेवलपर ने कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशन फाइल छोड़ दी, उसमें उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल से आपको मान लीजिए क्रेडेंशियल्स लीक हो गए, जैसे क्रेडेंशियल लीक का मतलब कि उसका मतलब लॉगिन पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड मिल गया आपको, ठीक है। तो उसके अंदर आके आप एज्यूर डेवऑप्स में आप एक रिवर्स शेल आप रन कर रहे हैं, और ये रिवर्स शेल में अपने जो मशीन का IP एड्रेस है वो डाल देंगे आप, जैसे यहाँ पे IP एड्रेस चेंज कर दिया एंड होल्ड, ओके, और आपने लिसनर खोल देना है आपको, मतलब ऐसे ये तो एक नॉर्मल सा CTF है। ऐसे और भी आगे चैलेंजिंग CTF आते हैं, जैसे PHP माई एडमिन जो उसने दिखाया था, मनी ने दिखाया था स्टार्टिंग में डेटाबेस का, तो आप उसका अगर आपको लॉगिन पासवर्ड पता है तो इजीली आप उसके अंदर भी उसको हैक कर सकते हैं, आपको उससे रिवर्स कनेक्शन मिल सकता है। तो मैंने यहाँ पे एज्यूर डेवऑप्स के प्रोजेक्ट्स में नया एक वेबसाइट का बना दिया, लेकिन उसमें मैंने shell.aspx फाइल अपनी ड्रॉप कर दी, जो एक्चुअली एक मैलवेयर है, मतलब वायरस है एक। सो उससे मुझे एक रिवर्स शेल मिल गया बैकग्राउंड में, जब मैंने इसको रन किया वेबसाइट में जाके तो मुझे मिल गया, और ये मशीन से मुझे कनेक्शन भी मिल गया, जैसे आपको दिख रहा होगा विंडोज मशीन है इसलिए C ड्राइव लिख के आ रहा है। और फिर इसके अंदर आपको मतलब और एन्यूमरेशन करना है, इसके अंदर और सर्च करना है आपको, और आगे जाके आपको फ्लैग एक मिल जाएगा और उसी फ्लैग को सबमिट कर देना है। अब मशीन के अंदर आने का मतलब ये नहीं कि आपके मशीन ऑन कर ली, इसमें भी आप लो लेवल यूजर रहेंगे, आपको हाई लेवल मतलब रूट या सिस एडमिन बनना पड़ेगा। तो उसके लिए भी इसमें मतलब फ्लॉ ढूंढना होगा, मान लीजिए कोई सर्विस है, पुरानी सर्विस है, अपडेट नहीं की है, उसमें कोई वर्नबिलिटी थी, तो उसके जरिए आप प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक सा CTF हो गया। अब बारी आती है जैसे कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। आपका पहला तो रहेगा कि लैपटॉप में मतलब यही आपको काली लिनक्स या पैरेट रखना ही होगा, और आपको लिनक्स और विंडोज एनवायरनमेंट से थोड़ी फैमिलियरिटी होनी चाहिए। अब फैमिलियरिटी मतलब ये नहीं कि मतलब विंडोज है तो क्लिक एंड ऑल वगैरह, आपको इस पे काम करना आना चाहिए इस CMD में। तो ये चीज रहेगा, और रहेगा कि सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोटोकॉल, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, मतलब TCP, UDP, OSI मॉडल, इन सब एंड ऑल में आपको मतलब आपकी सॉलिड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे CCNA सुना होगा किसी ने, CCNA का जो कोर्स होता है वो मतलब उसका थोड़ा बहुत आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि CCNA का पार्ट का। और वेब इन्वायरमेंट से तो आपको फैमिलिटी होनी चाहिए HTML, जावास्क्रिप्ट, PHP एंड SQL में, और कोई एक लैंग्वेज इनमें से, पाइथन और रूबी, लेकिन पाइथन ज़्यादा फेवरेबल है। अब बारी आती है कि आपको CTF में भी आपकी डोमेन्स होती हैं, फॉरेंसिक्स, क्रिप्टोग्राफी, वेब एक्सप्लॉयटेशन, रिवर्स इंजीनियरिंग एंड बाइनरी एक्सप्लॉयटेशन। तो मेरा तो फुल फोकस वेब पे था और बाइनरी एक्सप्लॉयटेशन में, ये दो में मैं बहुत मतलब हाँ इन्वॉल्व हूँ। फॉरेंसिक्स एंड क्रिप्टोग्राफी मुझे थोड़ा बहुत पता है। सो जैसे आपने बाइनरी एक्सप्लॉयटेशन का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा। जैसे कुसुम मैम की लैब में आप लोग मतलब प्रोग्राम्स एंड ऑल तो लिखे होंगे लिनक्स पे, लेकिन कभी कभी आप जब कंपाइल करते होंगे या प्रोग्राम रन करते होंगे तो एक एरर बहुत कॉमन है, वो हमेशा आता होगा। क्या नाम था उसका, सेगमेंटेशन फॉल्ट, कोर डंप्ड करके, ये बहुत आपने मतलब टैकल किया होगा। सो बाइनरी एक्सप्लॉयटेशन बेसिकली यही है कि आपका जो बफर ओवरफ्लो अटैक्स हैं, तो जब वो सेगमेंटेशन फॉल्ट हो रहा है मतलब मेमोरी फुल हो जा रही है,
तो मतलब मेमोरी अगर आप फुल करते जा रहे हैं उसमें मतलब अब एनाटॉमी ऑफ मेमोरी मैं बताता हूँ कि जैसे आपका EIP ESP मतलब ये सब तो थोड़ा डीप जा रहा हूँ, तो उसमें आप जब ओवरफ्लो करेंगे तो एक रिवर्स शेल का भी कोड डाल सकते हैं उसमें। तो जब वो ओवरफ्लो हो जाएगा तो आपको रिवर्स शेल मिल जाएगा बैक फ्रॉम मशीन, मतलब कि कोई भी बाइनरी फाइल हुई या कुछ भी हुआ। सो ये आता है बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन में। वेब एक्सप्लॉइटेशन में तो आपको पता होगा XSS SQL इंजेक्शन। SQL इंजेक्शन मतलब आपका जैसे लॉगिन पेज हो रहता है सिंपल सा, उसका मान लीजिए यूजर नेम एडमिन है और पासवर्ड भी एडमिन है, लेकिन आपको पासवर्ड नहीं पता और डेवलपर ने कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशन की है SQL स्टेटमेंट्स के साथ, तो आप यूजर नेम में लिख सकते हैं जैसे मैं बताता हूँ, जैसे आप यूजर नेम में लिख रहे हैं एडमिन, मान लीजिए स्टेटमेंट ये है सेलेक्ट यूजर फ्रॉम पासवर्ड, ये नॉर्मल सा मैं बता रहा हूँ SQL स्टेटमेंट है। सेलेक्ट यूजर फ्रॉम पासवर्ड वेयर यूजर इज इक्वल, एक सेकेंड, फ्रॉम डेटाबेस वेयर यूजर equal to something and password equal to something। तो यहाँ पे आपका एडमिन पासवर्ड है, लेकिन आपको पासवर्ड बिल्कुल नहीं पता कि पासवर्ड क्या है, तो आप यूजर नेम में जहाँ पे यूजर मांगते हैं वहां पे आप अगर ये स्टेटमेंट लिख देंगे एडमिन, वेट अ मिनट, एडमिन और 1 इक्वल टू 1 डबल डैश, इसका मतलब है कि आगे का जितना भी कुछ है वो सिंगल लाइन में कमेंट हो गया है आपका, ठीक है। तो अगर ये आपका यूजर है तो ये जब इसके अंदर आएगा तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट हो जाएगा यूजर इक्वल टू एडमिन और 1 इक्वल टू 1, एंड इसके बाद से जो भी कुछ था सब गायब हो गया। तो असली स्टेटमेंट आपका ये हुआ, आपका पासवर्ड उसने देखा भी नहीं, तो आप लॉग इन हो गए एडमिन से। तो ये आपका SQL इंजेक्शन अटैक हो गया। अब बारी आता है कमांड लाइन इंजेक्शन, चलो ये सब तो बाद में बताऊंगा, और डीप में जा रहा है ये, XSS एंड ऑल बहुत सारे रहते हैं इसमें अटैक्स में। अब बात करते हैं CTF में ही बात करते हैं, मेनली आपको CTF ही करना है क्योंकि CTF ही एग्जैक्ट रियल वर्ल्ड जैसे ही रहता है। इसमें प्रॉब्लम्स दिया रहता है कि कोई वेबसाइट है अपाचे टॉमकैट में कोई फ्लॉ अगर है या ओल्डर वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसमें कुछ नया निकला है CVE नंबर, तो वो एंड ऑल आपको देखना होता है। और मैं कुछ साइट्स बता देता हूँ कि CTF प्रैक्टिस करने की। एक है हैक द बॉक्स, वो तो मेरा फेवरेट है, और ट्राई हैकमी पीको CTF, वो बहुत ही बेसिक है वो पीको CTF, तो सबको वहीं से स्टार्ट करना होगा स्टार्टिंग के लिए। और जॉब्स की बात करते हैं कि आगे आपको जॉब्स में मतलब क्या क्या रहेगा। बेसिकली यू शुड कीप इन माइंड दैट देयर इज नो जॉब नेम्ड एज एथिकल हैकर। आपको हमेशा सिक्योरिटी एनालिस्ट, पेन टेस्टर, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब पे आपको मतलब सर्च करना होगा। एथिकल हैकर नाम की कोई जॉब टाइटल नहीं होता। और आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, इंटरव्यू क्लियर करना है, रिफ्लेक्ट करना है अपनी CV को बग बाउंटी प्रोग्राम से कि मतलब आपने जो किया है एंड ऑल। और सर्टिफिकेशंस भी बाहर बहुत अवेलेबल हैं, जैसे OSCP, CISSP, OSCE या सिक्योरिटी प्लस। तो ये सर्टिफिकेशंस बिगिनर लेवल के लिए बिल्कुल नहीं है और बहुत ही हार्ड होते हैं ये सर्टिफिकेशन क्लियर करने के लिए। और आपको मोर एंड मोर CTF की प्रैक्टिस होनी चाहिए इनको क्रैक करने के लिए। एंड दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ एथिकल हैकिंग। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। मुझे हेलो सर। बहुत टेक्निकल टर्म। हाँ यस। हेलो सर, काली लिनक्स में मतलब सीखने के लिए कोई वेबसाइट है क्या सर? मतलब क्या रिकॉर्डेड लेक्चर्स यूडेमी पे हैं, लेकिन ऐसे आप परचेज ना करना, मुझसे लिंक ले लेना।
और उसमें यूडेमी पे भी बहुत सारे आपको हैकिंग के मिलेंगे, मेनली बहुत सारे फ्रॉड रहते हैं, वो बस 4-5 घंटे की वीडियो बना के छोड़ देते हैं, आगे तक नहीं रहता है। सर आप कब शेयर करेंगे? डिस्कॉर्ड पे मैं भेज दूंगा। मैं ऐड कर दूंगा अभी तुम लोगों को कुछ टाइम में, डिस्कॉर्ड की लिंक शेयर कर दूंगा उसको, उससे तुम सारे रिसोर्सेज जितने भी रहेंगे सब वहाँ प्रोवाइड कर देंगे, तुम सब एक्सेस कर पाओगे। ओके ओके सर, एंड वन मोर थिंग सर, मतलब ये वेब वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज मतलब कहाँ से स्टार्ट करें? मतलब कोई सीक्वल वो सब सीखे या टूल से काम करना सीखे सर? बेसिकली तुम्हें ना उस पे पहले आपको ना वेब पे तो जाना ही जाना है, वेब के सीटीएस वगैरह सॉल्व करो तो वहां से प्रैक्टिस होती है। बेसिकली दिक्कत क्या है ना, हैकिंग की यही दिक्कत है कि इसका मटेरियल प्रॉपर प्रोवाइडेड नहीं है, आपको सर्च करना पड़ता है। जो बिगनर है उसको मतलब खुद परेशान हो जाते हैं कि कहाँ से पढूं मैं या कहाँ से देखूं। लेकिन मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे। डिस्कॉर्ड पे साइबर सिक्योरिटी नाम का एक चैनल है, उसमें मैं सब शेयर कर दिया हूँ पहले ही। तो आप लोग जब ज्वाइन हो जाएंगे तो वहां से आप देख लीजिएगा लेक्चर एंड ऑल जो भी कोर्सेज दिए हैं मैंने। ओके सर। और किसी को कोई डाउट? ओके, थैंक यू। अगर कोई दिक्कत है तो डीएम कर देना मुझे, या नेट पे खुद देख लेना, सर्च कर लेना। ओके, थैंक यू अश्विन। सो ये बेसिक फील्ड्स हैं जो डेवलपमेंट में रहती हैं। इनके अलावा कुछ और फील्ड्स रहती हैं, जैसे अभी किसी एक ने पूछा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस फील्ड में आएगा। सो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद में एक फील्ड की तरह बोला जा सकता है, और अगर उसके बारे में सीखना है या समझना है, तुम खुद से अलग से तो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद डेवलप कर नहीं सकते हो, तुम्हारे कोर्स में भी इन्वॉल्व रहता है वो। और तुम्हें अगर इन डिटेल जाना है तो तुम ओपन सोर्स के थ्रू जा सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट चीज जो हम लोग को बस लास्ट टॉपिक ये रहेगा कि ओपन सोर्स के बारे में थोड़ा पता कर लेते हैं कि ओपन सोर्स होता क्या है। सो जैसे तुम कोई भी एप्लीकेशन मतलब कुछ भी चीज़ें बनाओगे, अभी वेब डेवलपमेंट का यूज़ करोगे, एंड्रॉयड का, AIML का, मतलब या तो एथिकल हैकिंग भी कर सकते हो, जो भी तुम करोगे तुम्हें कहीं ना कहीं उसका रियल वर्ल्ड यूसेज देखना रहेगा कि वो एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ लोग उसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं। सो उसके लिए तुम ओपन सोर्स के थ्रू जा सकते हो। ओपन सोर्स क्या है एक्चुअली? ओपन सोर्स एक तरह से बोला जा सकता है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं, कंपनीज रहती हैं जो अपना कोड इंटरनेट पे अवेलेबल कराती हैं कि सब उस कोड को देख सकते हैं, सब उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। और इससे फायदा क्या होता है, इतने सारे लोगों को ये कोड मिलता है। सो लोग जो खुद यूज करते हैं वो चाहते हैं कि वो और अच्छा एप्लीकेशन बने। सो वो कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें और उस एप्लीकेशन को और अच्छा बनाते हैं। लाइक मुझे एंड्रॉइड, जैसे एंड्रॉइड या गूगल के बहुत सारे दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं जो ओपन सोर्स हैं, उनका कोड सब पढ़ सकते हैं। सो एंड्रॉइड जैसे एक ओपन सोर्स में है, अब तुम्हें कुछ एंड्रॉइड में लगा कि ये चीज़ इंक्लूडेड होनी चाहिए, या ये सेटिंग्स में ऐसा कुछ है जो मेरे को इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, या ये होना ज़रूरी है। सो तुम वहाँ पर जाकर, मतलब गिटहब पे या फिर बिटबकेट, गिटलैब, ऐसी अलग अलग वेबसाइट्स बनी हुई हैं, वहाँ पे तुम उनका रिपोजिटरी, एक काइंड ऑफ प्रोजेक्ट उनका खोल सकते हो। वहाँ इश्यूज मिलेंगे तुम्हें, और इशू तुम एक नया बग या फिर कुछ रिपोर्ट कर सकते हो उनको कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं मुझे, या मुझे ये फीचर देखना अच्छा लगेगा। सो जो कंट्रीब्यूटर्स रहते हैं वो खुद से बोलेंगे कि हाँ ये फीचर मुझे भी चाहिए, या फिर हो सकता है किसी और रीजन से वो उसको सॉल्व करेंगे। ओके, और वो पुल रिक्वेस्ट बनाते हैं और उसको मर्ज करा दिया जाता है। सो ये ओपन सोर्स के थ्रू ही पॉसिबल है कि इतने सारे लोग आते हैं, सब साथ में कंट्रीब्यूट करते हैं और मतलब प्रोजेक्ट को बढ़ाते हैं। सो तुम्हें एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलता है कि कंपनी में क्या कैसा चल रहा है। अगर तुम चाहते हो तो तुम वहाँ पे जाके उन इश्यूज को ओपन कर सकते हो या कुछ इश्यूज सॉल्व कर सकते हो। ओपन सोर्स ये एक चीज हो जाती है। और ओपन सोर्स के साथ ये फायदा बहुत है कि तुम्हारा नेटवर्क बढ़ेगा। तुम बाकी सारे जो लोग भी कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, हो सकता है कुछ स्टूडेंट होंगे, हो सकता है कुछ कंपनी उसी सेम कंपनी के लिए सालों से काम कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग दूसरी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और मतलब कि फ्री टाइम में उनको अच्छी लगता है ऐसे किसी में कंट्रीब्यूट करना, तो आके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो तुम्हारी उनसे बात होगी, उनके साथ अपना नेटवर्क बढ़ेगा और उससे बहुत फायदा होता है।
सो ओपन सोर्स भी एक ऐसी फील्ड हो जाती है। हम आगे इन डेप्थ इन सब फील्ड्स में जाएंगे तब मतलब हर उसके सेशन लगा के पूरा वर्कशॉप टाइप रखेंगे, सो उसमें सब चीज़ें कवर करेंगे। सो अगर किसी और को कुछ डाउट है किसी चीज़ से रिलेटेड तो वो पूछ सकता है अभी, नहीं तो डिस्कॉर्ड से। हाँ, डिस्कॉर्ड का लिंक मैं भेज दूंगा, मैंने बोला अभी कुछ टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम रुकना, शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे ही शेयर हो जाएगा। ठीक है सर मल्टीपल फील्ड्स ज्वाइन कर सकते हैं जो आपने बताई, मतलब एक से ज्यादा में अभी एक साथ? मैंने व्हाट्सएप पे भी वही लिखा, एक किसी और ने भी पूछा था। तो तुम कर सकते हो मल्टीपल फील्ड्स, बट प्रेफर ये करा जाएगा कोई भी एक फील्ड को चूज करके उसमें इन डेप्थ जाना। तुम एक्सप्लोर करो कि एक एक में कुछ बेसिक से प्रोजेक्ट बना के देख लिया, जैसे तुम्हें वेब लग रहा है, एंड्रॉइड लग रहा है, वेब है, AIML है, एंड्रॉइड है, या ऐसे ही कुछ गेम डेवलपमेंट है, तो कुछ बेसिक सा बनाकर देखो, थोड़ा बहुत बेसिक चीज सीखने में आराम से सीख सकते हो, और वो सीखो। और उसके बाद माइक ऑन है, ओके। सो थोड़ा बहुत बेसिक प्रोजेक्ट बनाओ, पर किसी एक फील्ड में इन डेप्थ जाना, क्योंकि मल्टीपल फील्ड आने से बाहर से ऊपर से मल्टीपल फील्ड जाने का फायदा नहीं होगा। एक फील्ड को पहले सिलेक्ट कर और उसमें इन डेप्थ जा, जितनी ज्यादा उसकी नॉलेज होगी तुम ओपन सोर्स में भी आ पाओगे, या फिर खुद के अच्छे प्रोजेक्ट्स बना पाओगे अच्छे लेवल के, और वो तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आगे। ठीक है, सो बेटर रहेगा किसी एक फील्ड में इन डेप्थ जाना। ओके सर। और मैं कुछ ऐड करूँ इसमें, तो मतलब देयर इज समथिंग कॉल्ड पाई बेस्ड लर्निंग। जैसे तुमने देखा होगा पाई में एक ऊपर स्ट्रेट लाइन होती है और नीचे 2 लाइंस जारी होती है। तो वो ये चीज होती है कि तुम कुछ फील्ड्स में मतलब तुम्हें डायरेक्ट बस एक्सप्लोर करना होता है फील्ड्स को। मतलब हर एक फील्ड में थोड़ा थोड़ा तुमने मान लो एक प्रोजेक्ट बना लिया, हर एक फील्ड में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया, उसमें से जो भी तुम्हें फील्ड्स अच्छी लगे, जो भी तुम्हें इंटरेस्ट कर रही है, उसमें तुम इन डेप्थ जा सकते हो। मतलब तुम्हें ऐसा नहीं होना कि तुम डेप्थ ऑफ नॉलेज मास्टर ऑफ नॉन में, तुम्हें किसी एक फील्ड में मास्टर होने की तुम्हारा, बाकी सब में तुम नॉर्मल ऊपर से एक्सप्लोर कर सकते हो। सो किसी को कुछ डाउट है और तो पूछ सकता है। हाँ, ओपन सोर्स में एक और चीज़ है जो बतानी चाहिए कि बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स चलते हैं ओपन सोर्स में, और उन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने से तुम्हें सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, तुम्हारा नेटवर्क बढ़ता है, किसी में कुछ स्टाइपेंड भी देते हैं, और उनसे तुम्हारा मतलब जो लेवल रहेगा तुम्हारा वो तो बढ़ता ही बढ़ता है, तुम्हारा नेटवर्क भी बहुत अच्छा बनता है। जैसे जो सबसे कॉमन है वो हो जाता है गूगल समर ऑफ कोड, MLH मेजर लीग हैकिंग, इस MLH के फेलोशिप प्रोग्राम्स रहते हैं, वो रहते हैं, आउटरीच ही हो गया, और गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड हो गया। ये कुछ ओपन सोर्स प्रोग्राम्स हैं जिनमें जब तुम पार्टिसिपेट करते हो तो तुम्हें तुम्हारे मेंटर्स मिलते हैं, और तुम उनके साथ कंट्रीब्यूट करते हो, कुछ प्रोजेक्ट पूरा डेवलप करते हो, और उससे तुम्हारा नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा भी। और तुम्हारा ऑब्वियसली एक मेंटर मिलता है तुम्हें, वो यूजुअली मतलब 16 ईयर्स से काम कर रहे होते हैं, कुछ फील्ड में मतलब 8 ईयर्स से करते हैं, 16 ईयर्स, ऐसे ही रेंज के रहते हैं यूजुअली बहुत सारे मेंटर्स। तुम्हारी उनसे बातचीत होगी, तुम्हें नई नई चीज़ें पता चलेंगी कि एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में कोड कैसा लिखा जाता है। तुम जब खुद के प्रोजेक्ट बनाओगे तो तुम्हें उतने अच्छे से प्रोजेक्ट में तुमने चीज़ें नहीं लगाई चल जाएगा, वो तुम्हारा नॉर्मल प्रोजेक्ट है। पर तुम सेम टाइम पे अगर ओपन सोर्स में करोगे तो तुम्हें कोड लिखने के प्रॉपर वे पता चलेंगे, टेस्टिंग क्या होती है वो पता चलेगा, दूसरी और भी क्या क्या फील्ड्स हैं, क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, क्या क्या कैसे डिस्कशन होते हैं प्रॉपर किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर, वो सब तुम्हें समझ आएंगे। सो ये एक चीज़ हो जाती है ओपन सोर्स के थ्रू। और किसी को बाकी तो किसी को अगर डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो सेशन एंड करते हैं। हेलो सर। बोल सर क्या अश्विन सर अपना नंबर शेयर कर सकते हैं क्या सर? मैं एक्चुअल में क्या ऐसे व्हाट्सएप पे शेयर करने से कई बार प्रॉब्लम होती है, तो वही मैं डिस्कॉर्ड पे कर दूंगा, डिस्कॉर्ड पे पर्सनल उस पर वो कर लेना। अश्विन डिस्कॉर्ड पे भी बहुत एक्टिव रहता है, ठीक है, तो वहाँ वो बता देगा जो भी चीज़ें रहेंगी। तो मैं प्राइवेट ओपन सोर्स। हेलो सर। सर ओपन सोर्स कब स्टार्ट करना चाहिए फिर?
देख देखो किसी फील्ड में अच्छी नॉलेज हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं हो, ऐसे एडवांस बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। देखो थोड़े बहुत बेसिक प्रोजेक्ट्स बनाने आते हो तो एक दो प्रोजेक्ट्स बना ले, जो भी फील्ड देखो सही लगती है उसमें तूने बेसिक कुछ प्रोजेक्ट्स बना लिए, उसके बाद तू ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना चालू कर सकता है। ऐसे तो देखो जो गिट और गिटहब है ना, वो तो स्टार्टिंग में ही समझा देंगे, जैसे वेब डेवलपमेंट का जो सेशन लगेगा प्रॉपर उसमें ही स्टार्ट कर देंगे, गिट गिटहब दोनों समझा दिए जाएंगे। और पर इन डेप्थ अगर देखो किसी में कंट्रीब्यूशन करने वाली चीज है सो थोड़ा टाइम रुकना। पहले वेब डेवलपमेंट है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट है, जो भी फील्ड है तो थोड़ा बहुत सीख लेना उसके बारे में, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए मतलब। क्योंकि मैंने भी ऐसे ही करा था, 2-3 मंथ्स से दे दिए, बेसिक नॉलेज गेन कर ली और उसके बाद चला गया। जरूरी नहीं है ऐसे करो, हो सकता है कि तुम ज्यादा टाइम दो, 4-5 मंथ्स दो, 6 मंथ्स दो, प्रोजेक्ट्स बनाओ अच्छे अच्छे और ज्यादा इन डेप्थ जाओ और उसके बाद फिर तुम कर सकते हो आराम से। ओके सर प्रोजेक्ट कहाँ से मिलेगा? इसमें बहुत मजा आता है। एक जैसे मतलब जैसे वहाँ पे जो लीड डेवलपर्स होते हैं जिन्हें मतलब इतने ऐसे भी होते हैं जिन्होंने वो पूरा ऐप जो फाउंडर्स होते हैं उसके लीड डेवलपर्स होते हैं, तुम उनके अंडर काम नहीं करते, उनके साथ में काम करते हो और बिल्कुल छोटे छोटे इश्यूज सॉल्व करते हो तुम, तो उसमें भी तुम्हें इतना काफी कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे जो चीज होती है वो पूरी प्रॉपर तरीके से होती है। मतलब हर एक चीज सही होनी चाहिए, नहीं तो अगर वो तुम्हारा कोड मर्ज हो गया तो कितने लोगों को इम्पैक्ट कर सकता है वो बैडली। तो वहां पे तुम्हें ये पता चलता है कि तुम्हें चीजें सही से कैसे करनी है और तुम्हें क्लीन कोड कैसे लिखना है, जो बाकी लोग अगर तुम्हारे कोड को पढ़े तो उन्हें समझ में आए कि तुमने लिखा क्या है। क्योंकि जैसे तुम अपना खुद का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें तुम कैसे भी कोड लिख सकते हो, तुम्हें पता है बाकी कोई नहीं पढ़ने वाला उसको। लेकिन जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में जब कंट्रीब्यूट करोगे तो तुम्हारा जो लिखा हुआ कोड है वो पता नहीं कितने लोग पढ़ने वाले हैं, कितने लोग उसके अराउंड चेंजेस करने वाले हैं। तो वो चीज तुम्हें आती है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कोड लिखा कैसे जाता है, और काफी मजा आता है, काफी कुछ सीखने को मिलता है छोटे छोटे इश्यूज सॉल्व करने से भी। रितेश ये कह रहा है कि प्रोजेक्ट कहाँ से मिलेंगे, तो बहुत सारे वेज रहते हैं। मैं देखो एक पर्टिकुलर साइट शेयर कर दूंगा, उस पर पूरी लिस्ट है और किसमें क्या डिफिकल्टी, कितने ओपन इश्यूज हैं, इन सब की पूरी डिटेल्स दी हुई हैं। सो मैं देखो वो एक साइट भी शेयर कर दूंगा और बहुत सारी तो खुद भी सर्च करेगा कि ओपन लिस्ट ऑफ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट टू कंट्रीब्यूट इन, और फॉर बिगनर्स भी सर्च करेगा तो भी देखो अच्छे खासे आ जाएंगे। और एक बात मान लेना, अगर कोई ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है ना तो ऑलमोस्ट सबका लेवल स्टार्टिंग में सेम ही रहता है। ऐसे कि हो सकता है कि कुछ थोड़े डिफिकल्ट हो, क्योंकि बड़े जो रहते हैं उनमें ऑब्वियसली बात बात के इश्यूज ज्यादा रहते हैं, पर इजी एंट्री लेवल इश्यूज कुछ ना कुछ हर ऑर्गेनाइजेशन के पास रहते ही हैं। और ऐसे तो अगर करना चाहते हो तो तुम GSOC की साइट पे भी जा सकते हो, वहाँ ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट में भी बहुत अच्छे अच्छे बिल जाते हैं, ठीक है। बट दूसरे जो रहेंगे अगर देखो थोड़े इजी चाहिए या क्या, तो उसके लिए भी मैं शेयर कर दूंगा देखो लिस्ट, ठीक है। साइट शेयर कर दूंगा, वहाँ पूरी लिस्ट है। और किसी को कुछ डाउट हो? बाकी एक गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोडबीएस में भी कुछ 100 प्रोजेक्ट्स हैं जो इस बार हो रहा है, तो वहाँ पे भी देख सकते हो, वो थोड़े बिगनर फ्रेंडली होंगे प्रोजेक्ट्स। राइट। ठीक है, अगर किसी को अब डाउट नहीं है तो लीव करते जाओ, अगर डाउट है तो रुक जाओ, पूछ लो। सर आई थिंक रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। हाँ ठीक। सर एक डाउट था हाँ कि जैसे एआई के लिए, जैसे सर ने बोला कि पहले पाइथन सीखनी है,